Shella, can you please check if Ishji or Arvind sir is there? आई डोंट थिंक सो दीदी। सिर्फ मैम ने ज्वाइन किया हुआ है। अरविंद सर इज नॉट देयर। एंड ईशजी भी ज्वाइन नहीं किए दीदी। मैम इज देयर। Okay. यस। Anyway, so we can start by taking sharings until, Good morning, ma'am. yes. Good morning. Anybody would like to share how they have been practicing these last few days? Anyone? Can we have some, like after doing the 13th day especially, अब क्या change आया आप? First 12 days we have been doing a lot of gratitude for the past, the present. So now when we are getting into the future, so anyone would like to share how you have been practicing or how MMM practice has been helping you doing in group, or how even the secret movie is giving you any? Yes. Yes, Sumita ji, please. Good morning, Sarita Di. First and foremost, thank you so much for giving me this opportunity to share my experience after doing MMM and listening to the movie Secret. There's one sharing in terms of relationship. There was a certain relationship breakdown for many years with a certain person in my family, and I really wanted to change and transform it into a very good relationship the way it used to be, a very friendly relationship, loving, caring, and all. So I started practicing MMM, and one of my desires was this, that I want to have loving, respectful, and mutual understanding relationship with everyone around me. So I started visualizing, I started seeing those pictures of that certain person, and I even started recalling all those beautiful memories that we spent together, the laughters, the fun, those moments. So I was practicing all these, and I was planning to come to 25th retreat in AOL, Bangalore. Certain things happened in my life on 23rd. That person, he was blessed with a baby, and I was so grateful. I was present over there. I was able to support his wife, and it turned out to be beautiful. And then when I came back home, I started visualizing that I really want to spend more time with the baby, and I really want to support them more so that maybe due to all this, we'll have those beautiful moments again come in my life, in our life, both of us, because I think so it's both the ways. If I am feeling like this, that I'm missing this beautiful relationship, definitely the same positive energy will be going to him also, that he is also missing the same beautiful relationship. And magically on 25th, the baby and the mother and her mother, they are staying at my place, and I was able to support them, and I'm planning to do more and more of visualization in this relationship zone. And I'm so grateful that there are 3 times that MMM starts, because yesterday I was thinking when to do MMM, 12 to 2, 4 to 6 p.m. But thankfully, because today in the morning, 4 to 6, the yesterday's video played. So I'm so grateful I was able to cover up the things which I really wanted to do. So thank you so much, and thank you so much, Ashmeen ma'am, because I've realized these practices, when done 3 times, they actually keep on increasing your awareness. They keep on telling you, okay, this also is the point which I need to note down. Like in today's practice, also there were so many new points I wrote down while seeing the Secret movie. So I'm so blessed that Secret movie again came to our life, and I'm making sure that mom said that every month you try to see this movie again and again, and I'm planning to do that now and forever in my life. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Sumita. That was one thing even I would like to share from your sharing.
like watching the movie or any of these MMM practices, ऐसे लगा था शुरू में, अच्छा हमारे पास तो रिकॉर्डिंग है, कभी भी कर लेंगे, 12 से 2 हुआ तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो नेवर माइंड. बट इट डजंट वर्क. Sitting in the group is the only time I have written for 2 hours. उसके पहले जब तक दिस एक्स्ट्रा रिकॉर्डिंग शुरू नहीं हुई थी, आई wasn't doing it. I did it maybe only for an hour, half an hour. Is making me writing. Otherwise, दिन भर सोचती रहती हूँ, अच्छा I'll finish this work. Never comes. But now when there's a fixed time for the recordings to play, I mean, it just shows it's so important to be in structure. Thank you so much. Yes, I'm seeing a lot of people saying, yes, हाँ हमें भी ऐसा होता है. अच्छा हाँ, you're right. So come up and share. Come up and share. Who would like to share that? Yes, working this way or any other practice? Yes, Sharda ji. गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू मैम. मैम इज सो काइंड. मुझे पहले पता है एक ऐसे लगता था कि मैम ने अपने बिजनेस में ऐसे क्या वैल्यू ऐड की होगी कि मतलब इतना अच्छा मतलब उनका ग्रो हो गया. अब मुझे समझ आ रहा है कि वो हमारी सिर्फ मैजिक बुक में इतनी वैल्यू ऐड कर रही हैं. मॉर्निंग का भी सेशन सोचो, कैन यू इमेजिन, सुबह 4 बजे का सेशन कोई कर सकता है शुरू. शी इज सो काइंड. मतलब रियली. वो मैं वर्किंग हूँ तो मेरा लेट नाइट वाला मतलब शाम को 6 वाला नहीं होता, मैं 8 बजे घर आती हूँ. तो 6 बजे सुबह 4 बजे वाला मेरा इतना हेल्पफुल है सेशन. मैं डेली उसको करती हूँ और उसी से एक्चुअली मेरी प्रैक्टिस हो रही है. Awesome. तो थैंक यू. और शेयरिंग बताऊं थोड़ी, मतलब मेरे लिए बहुत अच्छी है. एक्चुअली लास्ट ईयर आई रोट कि मेरा ना जनवरी 25 में 70,000 रुपी मेरे अपने आए हैं. And I got 3,70,000 rupees. More Awesome. than enough. Awesome. तो the so abundant practice. तो जितनी भी प्रैक्टिसेस इस दौरान की तो उन सब की वजह से, और इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे ग्रुप में ही करना है. तो थैंक यू मॉर्निंग के सेशन के लिए, बहुत बहुत थैंक यू. Yes, that complete trust ना कि मैम ने शुरू की है तो कोई कारण से she knows कि है ना कि एनर्जी ग्रुप में काम करती है. That हाँ. complete trust is helping us. Thank तो you. नहीं, Yes. she is so kind and thank you a lot. जी, आईफोन के नाम से है. Please can you share? Yeah. Good morning, Sarita ji. Good morning. Can you hear me? Yes, we can. Yeah. We I can't just see you, but we can hear you. It's all right. okay. Uh, I just had a request because I joined the MMF, but due to some travel suddenly which have come up, I've not been able to spend It's time. okay. It's okay. You just on say it. what you want. What I want is this 3 days, 13th, from when the secret movie has been shown with some intention, right? Every day a little clipping. I couldn't get those recordings. Okay, you will get it. We will share the 2 days. Today, the third day will be played. Yeah. The 2 days video are on the group, but if you joined late, we can play them, share the link again today. Yeah. Thank you so much, Sarita. Thank you. Thank you so much. Yes, Meeta ji. Can you please unmute? Yeah. Good morning. Good morning, Good ma'am. morning, everyone. Ja, Meeta ji, पहले आप बोल लीजिए. Yes. बहुत मजा आ रहा है. I mean, average I'm doing at least 6 hours practice, which I had never Wow. done before. I mean, amazing. और इतना अंदर से खुशी हो रहा है. I had written as one of my dream कि ये साल में 2 vacations करने हैं मुझे. Already one vacation is planned and April dates have been fixed. One short trip is also planned and I'm going for 2 days. So दो एक इंटरनेशनल वेकेशन लिखा था, एक लोकल लिखा था. So 2 लोकल हो चुके हैं, इंटरनेशनल होंगे आगे, बट एब्सोल्युटली अंदर से बहुत मजा आ रहा है. So what do you do in your जब 6 hours of practice? बहुत जन को लगता है ना, अच्छा 6 घंटे में आप करते क्या हो? So
basically what I do is MMM जो होता है, I try to do it in 12 to 2, otherwise recording, because I also work. So if I'm in office, I cannot do it. And then other than that, उस दिन जो chapter हुआ है ना, what I do is another good thing I started is सारे practices 1 घंटे में करती हूँ. मतलब all the magic book chapters आज तक जितने हुए, तो वो सारे की practice हर रोज करती हूँ. Like magical way out of negativity, मेरे 2 situation है, तो उसी को repeat करके अलग अलग points ढूंढने की कोशिश करती हूँ. And if I रोज can't रिपीट find, करने I में repeat फीलिंग as आ I'm जाती है? grateful. रोज Sorry? रिपीट आप करते हो तो फीलिंग आ जाती है? Yeah, that is when I'm getting the feeling. यस. शुरू में नहीं आती थी, and I was wondering, but मैंने बोला नहीं करो, the quantity बढ़ेगी तो feeling आएगी, because one of the lectures I had heard from ma'am कि quantity and quality, right? So अभी नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, you keep on doing, you will get it, and I'm seeing that. Awesome, awesome. I'm just thoroughly enjoying it. Thank you so much. और संदीप जी के साथ भी दोपहर को जितने टाइम हो सकता है हम लोग इंटरनल ग्रुप में भी करते रहते हैं. बहुत बढ़िया. And it's amazing. Group यहाँ भी practices रास्ता are मिल also जाए ना. great. यस, वेरी Yeah, नाइस. yeah. Thank you so much. थैंक यू मीता जी. जी सुधा जी. गुड मॉर्निंग मैम. जी. ये मैं ये अरविंद सर ने बोला था कि थैंक यू फॉर द गिफ्ट ऑफ गुड न्यूज़. तो मेरी बेटी कभी भी नहीं जाना चाहती थी मंदिर में अपने ससुराल वालों के साथ, तो वो कल गई. मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा. मैंने बहुत प्रैक्टिस की इसकी और बहुत अच्छा लगा, वो गई. मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए. और ये सब हुआ थैंक यू से. क्या लिखते थे आप? क्या आपकी भावना रहती थी? मैं हर समय पूरे समय मेरे मन में चलता रहता था थैंक यू फॉर द गिफ्ट ऑफ गुड न्यूज़ करके. ये मैं हमेशा सोचती रहती थी, मेरे माइंड में चलता रहता था ये. बहुत तो मुझे बढ़िया. बहुत खुशी हुई, वो अपने ससुराल वालों के साथ गई, एंजॉय किया उसने और वापस आई बहुत खुश होके. बहुत बढ़िया. ये तो एक गुड न्यूज थी. तो अब आप कंटिन्यू रखेंगे ये बोलना? हाँ एकदम एकदम रखेंगे. मुझे बहुत अच्छा लगा. कुछ ऐसे छोटी छोटी चीजें से ही बड़ी चीज होगी मेरी शायद. थैंक ओके, थैंक यू मैम. थैंक जी. आचार्य जी. गुड मॉर्निंग सरिता जी. गुड मॉर्निंग आचार्य. प्रैक्टिस जो है जितनी बार हम कर रहे हैं उतनी बार हमें लग रहा है कि और ज्यादा कहते हैं ना कि मौका मिलता है अपने आप से जुड़ने का. और इस मार्च के महीने में 5 साल हो जाएंगे पूरा मैडम का स्टार्ट किए हुए. और मुझे आज भी याद है जब देहरादून में हम लोगों ने पहला रिट्रीट किया था मैडम के साथ, तो कुछ बातें हुई और वो सब कुछ बातें वैसी की वैसी अब हो रही हैं. एक पूरे दिन का ही अगर देखा जाए तो सिस्टम बना दिया है कि जिसको जब करना है करे. और 2 घंटे का जो प्रैक्टिस है एमएमएम, ये सच में आपको बहुत कुछ सीखने को दूसरों से, अपने से, मैडम से, एनी जी से, ईश जी से, या बाकी जो लोग भी करवाते हैं, वो अपने आप में बहुत बढ़िया रहता है. और शेयरिंग से बहुत कुछ सीखने को मिलता है. तो मेरा शुरू से ही रहा है कि जिनके जीवन में भी कुछ अच्छा हो रहा है, हुआ है, वो अपने आप में शेयर जरूर करें. और जब शेयर करते हैं तो जिनके जीवन में कुछ ऐसा चल रहा होता है, जिन्हें लग रहा होता है कि अभी नहीं हो रहा, उनके अंदर एक हिम्मत आती है. और बहुत ही पिछले साल 12 रिट्रीट, इस साल 52 पॉडकास्ट, और ये अपने आप में अद्भुत तरीके से रहेंगे. और हमारा यही है कि हम लोग उसको फॉरवर्ड करें, लाइक करें, कमेंट करें. और ये तो होने ही वाला है. और मैडम ने अगर सोचा है अपने लिए, हमारे लिए, तो ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से होंगी. थैंक यू आपके लिए और बाकी सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. मैं बहुत खुश हूँ आज 26 जनवरी का दिन, हमारे देश के गणतंत्र दिवस का दिन. लास्ट ईयर हम आगरा में थे मैडम के साथ में, और कल बेंगलोर में. अपने आप में कुछ ना कुछ सहयोग, कुछ भी नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ ऐसी चीजें बन रही हैं जो मैडम ने कहा वो हो रहा है.
वो दिन 26 जनवरी हो, चाहे 15 अगस्त हो, नया साल हो, दिवाली हो, धनतेरस हो, सच में बहुत जीवन में मैडम ने सिर्फ छूकर ही लोगों के जीवन को बदल दिया है। और प्रैक्टिस तो करनी है, लेकिन हाँ, मैडम के साथ रहकर प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होती है। ये मेरा अपना अनुभव है। बस यही है कि सब लोग अपनी शेयरिंग करें, और छोटी बड़ी शेयरिंग कुछ नहीं होती, सब शेयरिंग बड़ी है। बहुत बहुत थैंक यू सरिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम, थैंक यू अश्विन जी, बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू आचार्य जी। आप जिस लेवल पे अपने इनोवेटिवनेस से इतनी शेयरिंग्स करवाते हैं, इतनी शेयरिंग्स जो आप पोस्ट करते हैं, दैट इज सो वेरी हेल्पफुल, दैट इज सो इंस्पायरिंग। ये छोटी छोटी वीडियोस आप डाल रहे हो, एंड योर पॉजिटिविटी ऑलवेज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आचार्य। थैंक यू। यस, अंजलि। गुड हेलो। मॉर्निंग सरिता जी। आई कुडंट बिलीव इट, आई कुडंट बिलीव इट, इसीलिए पहले चलिए, लेट्स हैव योर शेयरिंग। मेरा क्वेश्चन था ना एक दो दिन पहले मैम से कि क्या रहता है ऑफ मतलब ऑनलाइन अगर हम सेशन करते हैं तो कैसे एनर्जी वर्क करती है। आज मैंने उसको एक्चुअल में फील किया। कल मेरे छोटे बेटे का बर्थडे था और कल पूरा दिन बिजी था। पूरा दिन मेरे बड़ा बेटे का एक्टिविटी भी थी, उसका परफॉर्मेंस था उसमें एनसीसी में। तो मैं मॉर्निंग में जल्दी वही 4 बजे उठ के बिना किसी रेस्ट के बस फटाफट अपना काम करने में लगी हुई थी और पूरे दिन कोई रेस्ट नहीं। रात को भी हम लोग 2 बजे आए और 4 बजे मुझे मॉर्निंग में चलाना था सेशन। तो मुझे लगा पता नहीं कैसे हो पाएगा, बट हाँ मुझे करना तो है। और मैंने 2 घंटा रेगुलर 4 बजे से 6 बजे तक रेगुलर मैंने लिखा है, अपना प्रैक्टिस की है, 9 प्रैक्टिसेस की है मैजिक बुक की। तो वो एनर्जी फील की आज मैंने कि सच में कितना एक्टिव रह सकते हैं हम और क्या होती है ऑनलाइन रहकर भी वो मैस एनर्जी। उसका आंसर मुझे मिल गया। मैम ने बोला था करने के लिए कि करके देखो, तो सच में मैम इट्स मैजिकल। थैंक यू सो मच। और अभी भी इतनी एनर्जी फील हो रही है कि कुछ भी कर सकती हूँ। तो मेरी शेयरिंग का आज मैंने सोचा कि आज तो मैं जरूर शेयर करूंगी। आई कैन थैंक यू सी ये सो भी मैम मच। के बोलने का असर है कि आप बोलो। राइट। थैंक यू सो मच, इट्स यस सच अ प्लेजर टू सी यू एंड ब्यूटीफुल शेयरिंग। एंड आई नो ये मैंने आप में ये डेडिकेशन देखा है कि जो काम करना है। 2 बजे सोई हूँ, आपको पता है कि मैं सरिता जी को फोन कर दूंगी तो वो प्ले कर देगी, बट यू डिडंट डू दैट। यू टुक द इनिशिएटिव कि नहीं, मेरा ड्यूटी है तो मुझे ही करना है। आई मीन दिस इज समथिंग आई लर्न फ्रॉम यू। ऑसम अंजलि, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच मैम। गुड मॉर्निंग मैम। जी। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, बोलिए। मैम। मैं नागपुर से कुंदा उराडे बात कर रही मैम। हम्म। मैम अभी टूर्नामेंट चालू था, मेरा बेटा बोल रहा था मम्मी मेरे लिए मैनिफेस्ट करे और बोल रहे कि टीम जीत जाए करके और मैन ऑफ द मैच मिले करके। मैंने मैम 3 दिन ऐसे ही बोला कि मेरा बेटा जीत गया है और टीम भी जीत गई। और तीसरे दिन बोला कि थैंक यू रौनक, तुझे मैन ऑफ द मैच मिल गया करके ऐसे ही लिखा था मैम। और उसी दिन उसको मैन ऑफ द मैच मिल गया और टीम भी जीत गई मैम। वाओ, वाओ। और थैंक यू फॉर द गिफ्ट, गिफ्ट गुड न्यूज और ऐसे बोल रही थी मैम मैं। तो कल मुझे अकाउंट में पैसे भी आ गए और एक जन ने मुझे गिफ्ट घर में साड़ी और कुछ सामान गिफ्ट दिया मैम घर में लाके। और ऐसा सोचा ही नहीं था, मेरे जेठानी ने बैग। और रोज मुझे कुछ ना कुछ नए नए गिफ्ट्स मिल रहे मैम। इतना मैजिक हो रहा है। तो इसको आपको क्या लगता है, क्या चीज का असर है? आपका थैंक यू करने का, आपका खुश रहने का? हाँ मैम। और सोचा था मैम कि उसके बड़े पापा के हाथ से ही उसको मैन ऑफ द मैच मिला है। और फिर मैंने सोचा कि जान दो, बड़े पापा के हाथ से नहीं दूसरे के हाथ से मिले। तो लिखा मैम दूसरे का नाम, लेकिन उसके बड़े पापा के हाथ से ही मिला मैम उसको मैन ऑफ द मैच। वाह, वाह, बहुत बढ़िया। तो यूनिवर्स हमेशा ना गिव्स मोर देन यू आस्क फॉर। अब हम खुश रहते हैं ना, तो जो हम इतना सोचते हैं, यूनिवर्स इतना देता है। दैट इज द पावर ऑफ यूनिवर्स, कि वो हमेशा, इससे हमें रियलाइज होता है ना, हमेशा वो तो देने बैठा है, हमें मांगना ही नहीं आया, तरीका ही नहीं आया। राइट। थैंक यू सो मच। जी सुष्मिता जी। गुड मॉर्निंग शैला मैम। गुड मॉर्निंग आशी मैम।
जी, गुड मॉर्निंग। राजाचार्य सर है, उनको भी गुड मॉर्निंग। मैं मैजिक बुक में इस ग्रुप में आई हूँ, आचार्य सर के थ्रू से आई थी पहले। और मैं माधवी, जैसे मैं हम लोगों ने ज्वाइन किया ना ये MM में, उसके बाद मुझे अभी बर्थडे मेरा था 13 जनवरी को, एक मोबाइल गिफ्ट दिया नया। और रोज मुझे कुछ ना कुछ मतलब गिफ्ट तरह से मिलता भी है, मुझे कुछ ना कुछ हो रहा वाओ है। वाओ वाओ वाओ। और अभी मैं गई थी गोपालपुर रिटर्न, मैम को पता भी है मैं जैसे तो अभी बेटा का मतलब मैं जॉब के लिए पूछी थी मैम को। मैम जैसे बोलते मतलब बोली थी, मैं सर अरविंद सर जैसे बोलते थे, मैं ऐसे रोज प्रैक्टिस करती हूँ। अभी मैम ना उसका इतना इंटरव्यू का मतलब आ रहा है लगातार, मतलब उसका रोज रहता है इंटरव्यू कुछ ना कुछ। अब अभी जिस कंपनी में वो जॉब कर रहा है उसमें उसको जिस मतलब जिसमें वो MS किया था उसमें उसको मिल गया है जॉब। वाह, थैंक यू आसमान मैम, थैंक यू आचार्य सर, अस्सलाम मैम आपको भी। जैसे आप लोगों ने बोलते हो ब्राह्मण में, तो वैसे प्रैक्टिस में करती हूँ। अब मैम भी जैसे बोली है ऐसे करती हूँ, तो फिर संदीप जी के साथ भी मैं प्रैक्टिस करती हूँ, जैसे वो बोलते जाते हैं मैं करती हूँ। मतलब लगातार हम लोगों 7-8 घंटा प्रैक्टिस करते ही है, सुबह से लेकर रात तक। थैंक यू। हमें हमें वो समय याद आते हैं जब शुरू में ना, जब फर्स्ट टाइम रिट्रीट में मैं गई नहीं थी, जो आचार्य जी बात कर रहे थे रिट्रीट के बारे में। उसमें पहली बार मैम ने सुना कि किसी ने कहा जो गई थी, कि मैम ने 365 ग्रेटिट्यूड लिखने को कहा। एंड दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट टाइम्स। एंड सुन के लगा 365 ग्रेटिट्यूड एक बार में, पूरा एक दिन मैम ने लिखवाया, कैसे किया होगा। एंड आज ये आम बात हो गई है, कहाँ से कहाँ आ गए कि देखिए आप लोग 6 घंटे 8 घंटे, एनीबॉडी इज प्रैक्टिसिंग। वाओ। रोज कुछ ना कुछ मजीक हो रहे हैं। मैम मेरे गार्डन में भी अभी मेरी बॉल का सीजन है, यकीन नहीं करोगे वो मतलब 8 इंच का फ्लावर, मतलब इतना बड़ा मैं कभी देखी नहीं थी, इतना बड़ा फूल होता है। मतलब मैंने तो उसको देख के मुझे लगता है मेरे घर में तो मैजिक ही हो रहा है। और जो आते भी है ना बोलते अरे सच में तुम जो प्रैक्टिस करो कुछ तो फर्क है। तो मुझे इतना खुश लगता है चलो मतलब दिख रहा है दूसरे को भी। तो थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया, यही है ना, छोटी छोटी चीजों में। नहीं तो कोई फूल देख के सोचेगा भी नहीं इसमें मैजिक, अच्छा मेरे गार्डन के फूल बहुत अच्छे हुए, हम्म, लेकिन उसमें भी मैजिक ढूंढना। हम्म। थैंक्स टू यू, थैंक यू और सो एक मच। दिन भी मैम जब प्रैक्टिस कर रही थी जो मनी रिलेशन का, तो उस समय मेरे एक फ्रेंड आई, तो मैं देख रही बोलती बाप रे कितना मजा आ रहा है, मैं भी अभी ज्वाइन करूंगी। तो मैं बोले हाँ जरूर ज्वाइन करो। देख के भी बहुत उनको बढ़िया। अच्छा लगा। जी, डिवाइन पावर के नाम से। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, मैं बोलूं? जस्ट अ मोमेंट, आपकी आवाज नहीं आ रही है डिवाइन पावर के नाम से। जी शशि जी, आप बोलिए। हाँ जी। परसों मैं अपना बॉब मूवमेंट करती हूँ। परसों मैं ना 3:33 पे उठी थी। तो उसके बाद माता पिता सबका ग्रेटिट्यूड करके 4 बजे मेडिटेशन पे बैठ गई और क्लास ले रही थी। उसके बाद मेरी गहरी नींद आ गई और मेरा मोबाइल खुला हुआ था ये। तो मेरे को मतलब ऐसा लगा सपने में चली गई कि आशी मैम मेरे घर पर ही हैं और वही ड्रेस में हैं और सारा क्या कहते हैं सब लोग बैठे हुए हैं, तो घर पर ही पूरी क्लास चल रही है। जब आंख खुली तो देखा कि मैम भी वही ड्रेस पहने हुए हैं जो मेरे सपने में आई थी। तो फिर उसके बाद बाकी 6 बजे से लेके और 7:30 की क्लास फिर मैंने दोबारा अटेंड की। तो ये मेरे को वाव मोमेंट था मेरा। और मास में एनर्जी का तो चल ही रहे, जैसे अभी इन्होंने कहा 365 ग्रेटिट्यूड लिखने के लिए। तो वो तरीका अब हमें मैम ने सिखाया कि किस तरह से मतलब लिखना चाहिए। तो हर चीज बहुत अच्छी चल रही है, बस यही कहना चाहूंगी। थैंक यू। बहुत थैंक यू। बढ़िया शशि जी, थैंक यू सो मच। जी श्वेता जी। मैम मेरी शेयरिंग है डे बिफोर यस्टरडे। मैम जब यस्टरडे से पहले वाले दिन मैम जब मनी मैजिक करा रही थी, जब हम मनी के लिए मेडिटेशन कर रहे थे और उसके बाद ही जस्ट क्लास ऑफ हो गई। और क्लास ऑफ होते ही मेरे पास पैसों की बारिश होने लगी। पहले 10,000 आए, फिर 20,000 आए, फिर 10,000, फिर 10,000, ऐसे करके 50,000 रुपीज मेरे अकाउंट में आए। और वो पैसे का मुझे पता ही नहीं ये कहाँ से आए, क्यों आए, किसके आए। मतलब आई वॉज आस्किंग टू ईच एंड एवरी वन कि किसने भेजे, किसने भेजे, तुम्हारे तो नहीं है।
बाद में मुझे क्लियर हो गया, बट वो मतलब मैं इतनी खुश कि लक्ष्मी माँ बारिश करती गई और इतने सारे पैसे मेरे पास आए। Wow. तो आई वाज वेरी 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 हैप्पी। Wow. Okay, let us take the last sharing. Mohanji. गुड मॉर्निंग। जी, गुड मॉर्निंग मोहनजी। हाँ जी, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ और मैं थैंक्स करता हूँ। मैंने पहले भी बुक्स किए लेकिन कभी प्रोफेशनल की तरह मैंने ग्रेटिट्यूड नहीं लिखे, ब्लेसिंग भी नहीं करता था क्योंकि बिजी रहते थे। अभी मैं जो लग के कर रहा हूँ तो मैं आप सबका मॉर्निंग अमृत वेला में आचार्य सर का और शैला दीदी का, संदीप दीदी का और मेरी वाइफ का जिसने मेरे को शुक्राना ग्रुप से जोड़ा। और मैं दिल्ली का जो है पार्टी हुई थी उसका मतलब मैजिक ये था कि डबल डेकर में ट्रेन में वेटिंग जो होती है ना वो कभी क्लियर नहीं होती। तो मेरी 28 वेटिंग थी तो मैंने यही कहा भी अगर नहीं होगा तो अपने बस की टिकट बुक करा लेते। लेकिन इट्स अमेजिंग कि 2 घंटे बाद ही हमारी दोनों की सीट कंफर्म होगी और इतना मतलब एंजॉय किया। और आचार्य सर का जो छोटी छोटी वीडियो क्लिप डालते हैं उनको दिल से धन्यवाद। आप कितना कर रहे हैं, हम भी ये सोचते हैं कि हम भी उसमें कुछ शेयर कर पाए। स्पेशली संदीप जी जो लिखवाना शुरू किया ग्रेटिट्यूड, इट्स अमेजिंग अमेजिंग। और पूरी एंटायर शुक्राना टीम को बहुत ही दिल से धन्यवाद। और मैजिक ये है कि मैं लिख किसी और चीज के लिए रहा हूँ लेकिन मेरे जो बालों में जो है ना वो काफी अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो वाओ, ये बहुत अच्छा शानदार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। तो रोंडा बर्न बोलती है ना, आप एक चीज के लिए करो लेकिन इफेक्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड इज इन योर होल लाइफ। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू आचार्य जी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम पीक स्टेट पे जाएंगे और सब लोगों ने करना है क्योंकि मैडम ने ये पीक स्टेट जो रखा है ये भी पूरा रिसर्च है कि आप एकदम अपनी एनर्जी हाई कर लीजिए। सो सब लोग किया कीजिए। धन्यवाद। Thank you very much. Good morning, everyone. Good 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 morning. morning, Good ma'am. morning, ma'am. Good morning. Happy Good morning, morning. ma'am. Love you. Good morning, ma'am. ma'am. Very good morning, ma'am. Good morning. Happy morning. Happy Amrit Vela, Good ma'am. morning. Morning. Good Good morning, morning. everyone. Good Good morning. Good morning, morning. ma'am. Good morning. And Good once you Good have morning, learned how ma'am. to make your Good morning morning, good, ma'am. good for yourself. Good morning and welcome. अगर आपने अपनी जिंदगी की मॉर्निंग को गुड बनाना सीख लिया है, good बनाना सीख लिया है, Good now it's morning, time to ma'am. make Good your morning. 1 second. Just a second. Good morning, magical morning to all of you. 1 second. Just let me. Okay, so thank you very much for your morning wishes. Thank you very much for a magical journey towards your own life. Happy birthday to people who are born on this beautiful day. Happy birthday to you and happy anniversary to lovely couples out there. Thank you very much for being here in this journey. और चाहे आप live session देखते हैं, चाहे recorded sessions देखते हैं, wherever you are, just feel that moment be the beginning moment of your learning. And if you're learning, you will keep going. Keep growing, whatever way you are growing, but you will be growing. And कई लोगों को ऐसा लगता है कि अरे ये मैजिक बुक तो मैंने कर ली, अरे मैंने ये चैप्टर तो मैं जानता हूँ, अरे असाइनमेंट्स तो मैंने किए हुए हैं। फिर भी जस्ट सच सच ही बताना जिन्होंने पहले कभी सुनी हुई है मैजिक बुक या की हुई है मुझे, कि अभी भी आपके दिन जादुई नहीं हुए हैं। आपके दिन अभी भी मिक्स है, कभी खुशी कभी गम है, कभी अच्छे निकलते हैं कभी बुरे निकलते हैं। बस सच सच बोलना बिल्कुल, कि मतलब कि आपके दिन क्या सच में जादुई हो गए हैं? Do you really live a very magical day every day? और is it a mix of कि कभी मैजिकल का मतलब होता है मनचाहा, और कई लोग ना अपने मन चाहे को जानने के लिए कई बार काम चोरी कर देते हैं। हाँ मैजिकल ही है। और घर में पैसा नहीं है, हाँ बच्चे से लड़ाई हो रही है, पति के साथ अनबन हो रही है, नौकरी अच्छी मिल नहीं रही है, या जो भी, हाँ, और अपनी इच्छाओं को बनाने में भी काम चोरी, और अपने दिन को जादुई बनाने में भी काम चोरी। पर ये क्यों हो रहा है? प्रैक्टिस में गड़बड़ है, कुछ ना कुछ प्रैक्टिस को जानने में कमी है, प्रैक्टिस को बनाने में कमी है। और जितना मर्जी कर लो आप, उसके बाद भी ऐसा लगता है कि देयर स्टिल सो मच टू लर्न। मैं व्हेनेवर आई एम डूइंग दिस बुक, इट्स ऑलवेज लाइक अरे अभी तो यहाँ पे भी कितना, इतना यहाँ पे भी कितना, लाइक मे बी आफ्टर डूइंग सो मेनी टाइम्स आई मे बी डूइंग 5 से 10% तक का मैं कह सकती हूँ कि प्रैक्टिस चलती है, बट 90% इज स्टिल अ स्कोप टू ग्रो, स्टिल अ स्कोप टू लर्न। देयर इज सो मच ऑफ स्कोप। उसी तरह से आपके दिन को भी जादुई बनाना, देयर इज सो मच स्कोप टू लर्न। पर वो आप ये सोचो कि बुक तो कर ली,
मतलब मैं कभी वही सोचती हूँ, ये बुक तो कर ली का मतलब क्या होता है? मतलब की हुई है, 10 बार की हुई है, 50 बार की हुई है, 50 बार कर ली अगर आप, फॉर एग्जाम्पल आपने, तो आपकी जिंदगी फुल्ली मैजिकल हो चुकी है। मतलब एक एक क्षेत्र में आपका मनचाहा प्राप्त कर चुके हो। और अगर नहीं करी, अगर नहीं मिला आपको आपका मनचाहा, तो अभी आपने बुक नहीं करी, बोलने के लिए की होगी पर आत्मसात नहीं करी, अंदर से आपने उसको पूरी तरह से फॉलो नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं करी। तो अगर हमें ऐसा लगता है, एंड इट्स ओके, मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर कोई चीज का स्कोप है तो क्यों नहीं ग्रो ना। और अगर अगर इस दिन आपको ये लगे कि अरे मुझे तो सब कुछ आता है, लाइक आई वॉज इन टू सम इंटरव्यू अ फ्यू डेज बैक, तो एंड वहां पर उन्होंने कुछ सवाल पूछा और मैंने कुछ जवाब दिया, और जवाब देने के लिए मुझे कुछ वर्बैटिम यूज करना था। मतलब कि मैंने कुछ मंत्र बोला, और मंत्र बोला, और ऑब्वियसली सारी टीम खड़ी होती है, या वो भी बात भी कर रही हूँ, और मैं जब किसी बात के मंत्र को उनको बता रही हूँ, बीच में कोई एक वर्ड जो मैंने एक्सचेंज कर, मतलब एक वर्ड जो मैंने अपनी जगह से अलग बोल दिया, और ठीक है वो मतलब इन अ 2 आवर्स इंटरव्यू वो एक वर्ड था जो अपनी जगह पे नहीं था, उसकी जगह पे कोई और वर्ड बोल दिया। एंड लेटर ऑन आई वॉज थिंकिंग, वाओ, आई स्टिल हैव सो मच टू लर्न। शुक्र है, मतलब अगर मेरे दिमाग में ये आ जाए कि मेरे को तो सब कुछ ही आता है, मुझे तो सब कुछ पता है, आई एम तो मतलब मैं तो डन डील हूँ, मतलब मुझे सब कुछ पता है, मुझे तो उस दिन तो मेरी मेरी जर्नी खत्म हो जाएगी, उस दिन तो मेरा ग्रोथ ही खत्म हो जाएगा, उस दिन तो मैं बस बचेगा ही कि आगे बढ़ने के लिए। सो आई वॉज जस्ट लुकिंग एट इट एंड लाइक आई वॉज सो मच रिलैक्स्ड इनसाइड कि शुक्र है भगवान, शुक्र है वाहिगुरु कि तूने अभी भी दिमाग में छोड़ा हुआ है और पब्लिकली छोड़ा हुआ है कि देयर सो मच टू लर्न, सो मच टू ग्रो। एंड दिस इज वेयर द ह्यूमन हैज अ मार्जिन टू ग्रो, है ना। और अगर आपके दिमाग में ये आता है अपने तो फंडे सारे क्लियर है जी, अपने को सब कुछ पता है, मुझे तो सारी दुनिया की नॉलेज है, विजडम है, मुझे तो सब कुछ आता है, तो मार लो मुंह पे थप्पड़ चार। क्यों? क्योंकि थोड़ा होश में आओ, जागो। अगर सब कुछ पता है तो फिर जिंदगी वैसी क्यों नहीं है जिसको और अगर आप ये कह रहे हो कि नहीं मैं तो मनचाही जिंदगी जी रहा हूँ, मेरी तो परफेक्ट जिंदगी है, तो इस धरती पे कर क्या रहे हो? फिर निकलो यहाँ से बाहर। मतलब क्या कर रहे हो? अगर आप ये कहते हो कि 100% मेरी जिंदगी वो है जो मेरी मनचाही है, तो फिर यहाँ पर बचा ही क्या और एंजॉय करने के लिए? क्योंकि आपने जो मन चाहा है वो तो प्राप्त कर लिया ना ना अपना गो आउट, बाकी देखो धरती के बाहर भी तो कितना कुछ है ना एंजॉय करने के लिए। सो आई ऑलवेज से you have a choice to have whatever you feel like, you think like, है ना। और अपने जिंदगी की सही सही ड्राफ्टिंग करते हुए जो हमने कल सीखी, कल का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि आप चाहते क्या हो, अपने आप से पूछो आप क्या चाहते हो, और अपने आप को लिख, अपनी चाहतों को लिखना, है ना। अपने टॉप 10 डिजायर्स को हमने बनाना सीखा, उसको ग्रैटिट्यूड के लैंग्वेज में लिखना। अब कई लोगों का सवाल ये हो सकता है कि मैम ये रोज लिखना है। हाँ, हाँ, ग्रैटिट्यूड की लैंग्वेज में, ओके। पर मैं ये नहीं कहूंगी कि 10 के 10 लिखो। आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ 3 3 6 9 के अंदर मैं सोचती हूँ तीन तीन इच्छाओं के ऊपर काम करो सबसे पहले। तो वो 3 इच्छाएं जो आपकी सबसे फेवरेट वाली हैं, जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट वाली हैं, उनको रोज लिखना ग्रैटिट्यूड के लैंग्वेज में। और जब आपने लिख लिया, उसके बाद आराम से बैठ जाओ, 8 मिनट का अलार्म लगाओ, टाइमर लगाओ, और उसके बाद अपनी उस इच्छा के ऊपर, आपने जब वो इच्छा पूरी हो रही है तो आपको कितनी खुशी हो रही है, कैसी 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 फीलिंग्स हो रही हैं, भावनाएं कैसी आ रही है, इसके बारे में बहुत सारा सोचो, डीपली सोचो। और फिर उसके बाद अगर वो इच्छा पूरी है, जो आपकी जो इच्छा पूरी हो गई है, तो आप उसको कैसे वहां पर फील क्या कर रहे हो, है ना, किसको बता रहे हो, कैसे बता रहे हो, कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो, सबसे अच्छी चीज जो आपने करनी, बेहतरीन चीज वो क्या कर रहे हो, वो मतलब फील करो ना करते हुए। जैसे कि आपकी बेहतरीन चीज ये है कि आपका सपनों का बंगला बन गया है, हाँ, उस बंगले में आप रह रहे हो, उसमें पूल है, उसमें ऐसी ड्राइव यार्ड है, पोर्श मतलब प्रॉपर अंदर, और इतना अच्छी किचन है, क्या ऊपर टेरेस गार्डन है, वो क्या फ्रंट में भी इतना बढ़िया गार्डन है। आप उसमें जब हो तो आप सबसे अच्छी चीज क्या कर रहे हो? मे बी आप अपने बच्चों के साथ स्विमिंग पूल में गोते लगा रहे हो, मजे ले रहे हो, आप वहां पर खेल खेल रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, वहां पर टेरेस पार्टी कर रहे हो, मे बी दैट इज व्हाट यू वांट टू डू इन योर न्यू होम। तो बैठो ना 8 मिनट, 8 मिनट बैठ जाओ, फील करो उस टेरेस को, उस टेरेस के ऊपर वाओ क्या कमाल का लाउंज है, क्या कमाल का बार बनाया है आपने, क्या म्यूजिक सिस्टम लगाया है बॉस का, मतलब बेस्ट वाला म्यूजिक सिस्टम लगाया हुआ है, क्या म्यूजिक बज रहा है चारों तरफ, क्या कैंडल्स की खूबसूरत रोशनी है, वाओ क्या ब्यूटीफुल टेरेस है, टेरेस ऐसा लग रहा है जैसे अपने आप में स्वर्ग है, क्या प्लांटर्स उगे हुए हैं, क्या बढ़िया बढ़िया उसमें वो आउटडोर फर्नीचर लगा हुआ है, क्या कमाल के बोगनविलिया के प्लांट, रंग बिरंगे फूल, हर तरफ से बेलें लटक रही हैं, वाओ मजा आ रहा है, क्या खूबसूरत वादियां हैं मेरी छत
छत के ऊपर, क्या बढ़िया सी टेरेस है। आई ऑलवेज, बिकॉज मेरे को ना ऊपर खुले आसमान के नीचे पार्टी करने में बड़ा मजा आता है। इतना बड़ा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई 5 स्टार लाउंज रिजॉर्ट में मैं पार्टी कर रहा हूँ। वाह, क्या बढ़िया बढ़िया शराबें लगी हुई हैं मेरी बार के अंदर। इफ यू आर अ पर्सन हु लव्स टू होस्ट विद अल्कोहल, तो ठीक है ना, देखो ना आपके बार में क्या क्या ब्रांड्स लगी हुई है, जिन की, वोडका की, बियर की, रम की, जो भी आप लोग लगाते हो लगाओ। आपके यहाँ केटरर कहाँ बैठा हुआ है? केटरर बैठा हुआ है वहां पर, क्या कमाल की तंदूरी खुशबू आ रही है, क्या अच्छे अच्छे स्नैक्स बन के आ रहे हैं। वाह, वहां पर, वहां वो ऑर्केस्ट्रा वाले लोग हैं, लाइव सिंगर गिटार बजा रहा है, क्या मजेदार गाने गा रहा है। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, फील ना, वहां पे म्यूजिक चल रहा है, लाइव सिंगिंग की आवाजें आ रही हैं, लोग जो भी एंटर करे वाह क्या टेरेस बनाई है तूने, तो घर पे इतना बढ़िया 5 स्टार लाउंज बना दिया। ओ वाह, क्या टेरेस है, क्या टेरेस है। लोग अंदर आ रहे हैं, लोग स्नैक्स खा रहे हैं, कोई ड्रिंक ले रहा है, कोई मॉकटेल ले रहा है, सब लोग कितने खुश हैं। क्या इंटीरियर है वहां, वहां झूले लटके हुए हैं, वहां कबाना कितना सुंदर लग रहा है। आप 8 मिनट अपने उस सपने में रहो ना, जो भी आपका सपना है। इफ यू कैन डू दैट, वो जो भी सपना है आपकी नौकरी का, आपके आपके शादी का, और आप उसके अंदर खुशियां मना रहे हो, खुशियां मना रहे हो, खुशियां मना रहे हो, बड़ी खुशी से ग्रेटफुल होकर कि वाओ थैंक यू भगवान, इतना प्यारा टेरेस गार्डन देने के लिए, इतने प्यारे फ्रेंड्स एंड फैमिली देने के लिए। हर कोई आके कितना दिल से खुश होता है, कितना दिल से ब्लेसिंग्स देता है। अगर आप 8 मिनट तक टिक पा रहे हो सपने में, बस यही तो करना है। यही तो करना है, और क्या करना है। सपने की क्लैरिटी चाहिए, है ना। उसके बाद आपको अपने सपने के लिए विजुअलाइजेशन चाहिए और ग्रैटिट्यूड चाहिए। बस योर वर्क इज डन, आपका काम हो गया। अब बाकी यूनिवर्स पे छोड़ दो। मतलब आप डेली बेसिस पे बस अपने 8 मिनट निकालो, और सपने के अंदर हाउ मेनी ऑफ यू प्रॉमिस कि आप अपने जो मोस्ट क्रिटिकल सपने हैं उसके अंदर 8 मिनट रोज रहकर, कि मतलब आपने क्या फीलिंग हो रही है। जैसे अगर सपोज टेरेस गार्डन पे एंजॉय कर रहा है, मेरा सपना नहीं है, मैंने तो वैसे ही अभी आपके सामने बना दिया है। मेरा नहीं है ये सपना। तो मतलब, तो मेरे को क्या फीलिंग हो रही है अगर मेरा सपना है, तो ओ आई एम फीलिंग सो जॉयफुल, आई एम फीलिंग सो, मतलब मजेदार, मतलब हैप्पी, आई एम फीलिंग सो थ्रिल्ड। जब लोग अंदर आ रहे हो, अंदर आते हैं सब लोग देखते हैं ऐसे मेरी टेरेस को, ओ वाओ क्या फूल कितने सुंदर सुंदर लग गए। मतलब आई एम फीलिंग सो अप्रिशिएटेड, सो एक्नॉलेज्ड, सो अकम्प्लिश्ड, कि मतलब जो अगर मेरा सपना पूरा हो रहा है तो मैं कैसा फील करूँ, किसको बता रही हूँ, फ्रेंड्स को बता रही हूँ सबको, कि यार मैंने नई टेरेस बनाई है, तुमने आना ही आना है यार, इस सैटरडे को मेरे घर पे पार्टी है, तो मैं अपने टेरेस बनाई है, तुमने फ्रेंड्स को बता रही हूँ। कैसे बता रही हूँ? सबको कॉल कर रही हूँ, या व्हाट्सएप पे मैसेज कर रही हूँ, या जैसे भी आप करते होगे मैं ऐसे बता रही हूँ। और सबसे बेहतरीन चीज क्या करी, सैटरडे नाइट पार्टी। मैंने सबसे बेहतरीन चीज ये करी है, सैटरडे नाइट को मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को बुला के वहां पे कमाल के ताबड़ तोड़ बारबेक्यू पार्टी करी है। तो ठीक है, फाइन, ओके, दिस इज व्हाट यू वांट टू डू, है ना। आपने अपना अपना ही तो करना है जो आपका वाला काम है। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू एज अ असाइनमेंट। और आई एम टेलिंग यू, इतना मजा आता है ना आप जब उस फीलिंग में होते हो, कि जब आप उस चीज को एंजॉय कर रहे हो, तो दैट्स इट। आपने जो काम करना है, सो अपने सपनों को प्रिसाइजली बनाना, है ना। और उसके बाद ये विजुअलाइजेशन पे 8-8 मिनट ईच सपने को देना। सो थैंक यू वेरी मच, बिकॉज वाई आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, इंग्लिश में कर लिया, हिंदी में कर लिया, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा सपना ये है कि हर इंसान को अपना सपना बनाना और पाना आना चाहिए। अपना सपना, है ना, जो भी है वो बनाना, खुद तो बनाना सीखो ना, क्या सपना है आपका, ड्राफ्ट करो, और पाना आना चाहिए। तो बनाना, पाना, आना चाहिए, ठीक है जी। आई होप आई एम प्रिटी क्लियर इन माई मिशन। सो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज हमारा बहुत प्यारा चैप्टर है, अपने दिन को जादुई बनाए, ठीक है। चलिए, अपने अपने दिनों को जादुई बनाना सीखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने अपने दिनों को जादुई बनाना नहीं सीखा, तो आपकी सारी इच्छाएं हकीकत में कैसे बदलेंगी? क्यों? क्योंकि इच्छाओं को हकीकत में बदलने के लिए आपको जो पावर चाहिए होती है, जो शक्ति चाहिए होती है, वो तो चाहिए ही चाहिए ना, वो तो आपको चाहिए। अब वो नहीं, अगर आप अपना हर दिन रोते पिटते निकाल रहे हो, किल किल करते निकालते हो, दुखी होते निकालते हो, लड़ाई झगड़ा करते निकालते हो, कंप्लेंट करते निकालते हो। जैसे कि मेरा कल का दिन था, मैं एट द एंड मैं मैजिक रॉक कर रही थी, तो मैंने देखा कि कंट्रीज से, स्टेट से, हमारा कल बेंगलोर में मीटअप था, तो मतलब लोग बॉम्बे से फ्लाई करके आ रहे हैं, जयपुर से फ्लाई करके आ रहे हैं, मतलब कोई वहाँ मस्कट से फ्लाई करके आ रहा है, मतलब कि कहाँ कहाँ से लोग फ्लाई करके आ रहे हैं सिर्फ एक दिन में कुछ घंटे के लिए मिलने के लिए। बट दिस इज व्हाट द गुड एनर्जी पुल्स फॉर ना, अट्रैक्शन इसी को कहा जाता है। एंड आई वाज सो ग्लैड। और उसके बाद मैंने देखा कि अच्छा, मैं कहाँ कहाँ पर मेरा ब्रेकडाउन थे, तो थोड़ा मेरे को लगा, एक तो धूप के मतलब कंप्लेंट कैसे कैसे आ रही थी मेरे दिमाग में, कि बहुत ही ज्यादा हमारा ओपन में गेट टुगेदर था, एंड मौसम हमें लगा कि अच्छा होगा, पर जो भी था थोड़ा ब्रेक डाउन हो गया। बहुत सनी डे था, तो जितनी छाया में बैठे थे हम छाया में बैठ गए, बट स्टिल आई वाज लुकिंग एट इट कि यार
कई बार मन में कंप्लेंट आई बीच में कि यार पसीने निकल रहे, धूप लग रही है, कोई भी बंदा बाहर कर उस शेड से बाहर खड़ा है तो मन में ऐसा वहम सा आ रहा था कि हाय वो आंटी बाहर क्यों खड़ी है, वो बच्चा बाहर क्यों खड़ा है, वो भी शेड में आ जाए। जितनी शेड में कैपेसिटी थी वो लोग हमें लगा कि 100 से कम होंगे, पर वो काफी सारे हो गए एंड तक आते आते। तो जितनी कैपेसिटी थी तो मन में आ रहा था कि सब लोग छाया में आ जाए तो अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद लगा कि जब एक्टिविटीज कर रहे हैं तो फिर ब्रेक डाउन आ रहा है मन में कि यार बहुत भीड़ है। अरे बोला भी था कि हग नहीं करना गले, ऐसे कोई नहीं बोलेगा कि हग कर लो हग कर लो। तब भी इतनी गर्मी पसीना पसीना हो रहे और पागलों की तरफ बोली जा रहे मैडम कैन आई हग यू कैन आई हग यू। तो मतलब कि मन को ना बोलते हुए भी बुरा लग रहा था कि कोई बेचारा इतनी दूर से प्यार से आया है, आपको प्यार दे रहा है, हाँ आपकी जो भी है। तो मतलब पर आप उसको कितना रिलक्टेंटली या कितना ऐसे बोले नहीं नहीं अभी हग नहीं करना प्लीज बाद में। तो ऐसे करके मन में भाव तो आता है ना, किसी को मना करते हुए लगता है कि यार इट्स अ नेगेटिव थिंग। तो पर मन में आ भी रहा है, कशमकश सी चल रही है कि करना भी है पर नहीं भी करना, होना भी चाहिए पर नहीं भी होना चाहिए। तो मैंने देखा अरे यार मैं यहाँ क्यों आई थी, या इस गेट टुगेदर का मेन पर्पस क्या था, गुड फीलिंग गुड फीलिंग गुड फीलिंग। अब क्या तू 100% गुड फीलिंग में है? नहीं। मतलब गुड फीलिंग किस चीज की, ये बहुत सारी गुड फीलिंग्स हैं, मिलने की एक्टिविटीज करने की सबकी शेयरिंग सुन के बहुत अच्छी फीलिंग में आने की, कितनी कमाल कमाल के मैजिक्स हो रहे हैं। साथ में पैरेलली नेगेटिव फीलिंग भी चल रही है कि अरे ये धूप हो रही है, अरे ये क्यों हो रहा है, अरे ऐसे क्यों हो रहा है, अच्छा ये फिनिश कर लूं, अरे वहां जाना है उनसे मिलने जाना है। तो डेस्पिरेशन नेगेटिविटी, कुछ लूज करने की, कहीं अगर हम लेट हो गए तो कहीं वहां पे वो उन्होंने आना था श्री श्री रविशंकर जी ने, तो वहां पर जाकर जब हम बैठे तो वहां पर टाइम लग गया काफी, कोई बहुत सारे लोग थे वहां। तो वहां पर लगे कि अरे बाहर अब शुक्राना वाले बैठे हुए हैं उनको भी हाँ टाइम देना है, अभी ये यहाँ से फ्री हो जाओ। तो ये क्या चल रहा है, कशमकश। हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट कि जितना भी कर लो आपके दिमाग में कभी ना कभी ऐसी चीज चलती रहती है कुछ ना कुछ, अरे दूध ना उबल जाए, बच्चे लेट ना हो जाए, अरे अभी तक काम वाली नहीं आई, अरे अभी तक वो कूड़े वाला क्यों नहीं आया, या अरे आज बॉस ने ये बोल दिया तो क्या होगा, अरे आज अगर ये हो गया तो क्या होगा। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा चलता ही रहता है दिमाग के अंदर। एंड बाहर वो जरूरी नहीं कि बाहर बाहर वाली दुनिया को तो साफ ही दिख रहा है कि हाँ जी यास्मीन जी बड़ी वो हो रही है ग्रैटिट्यूड में या बड़ी पॉजिटिव, उनको क्या पता मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। बाहर से दिखने में तो यही लग रहा है बड़ी पीसफुल है, बड़ी पेशेंस में, बड़ी प्यार से आराम से बैठी है, पर अंदर जो चल रहा है वो तो सिर्फ मैं जानती हूँ ना। एंड दिस इज हाउ वी रियली टेक आवर एनर्जी डाउन और लो, क्योंकि हमारे दिन में कई चीजें ऐसी हो रही होती हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती हैं। ओके, तो अब हम ऐसा क्या करें, मैं भी सीखूंगी आप भी सीखिएगा, ठीक है। हम ऐसा क्या करें कि हम अपने दिन को जादुई बनाएं। ओके, और ये आदत होती है, ये आदत अगर बनाओगे तो ही दिन जादुई बनेगा। नॉर्मली हम ये आदत मिस कर जाते हैं, चैप्टर तो पढ़ लेते हैं फिर बाद में आदत बनाना मिस कर जाते हैं। तो यहाँ पर दीपक चोपड़ा जी क्या बोल रहे हैं, अपने दिन को जादुई बनाएं। जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। इरादा मतलब क्या, जो आपका दिन है जैसा भी आपने बनाना, आपका इरादा तो यही है ना कि आज का दिन बहुत अच्छा बीते, है ना। हु वांट्स, किसका इरादा ऐसा होता है, एक एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। हाँ, तो अपने दिन को जादुई बनाए, जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। ठीक है, अभी कैसे करना है, शब्दों में घनीभूत कैसे, आपके शब्दों के अंदर आपके इरादे बोलने में और दिन में मैनिफेस्ट हो जाए। तो चलिए पढ़ते हैं। दीपक चोपड़ा, वी आर वेरी ब्लेस्ड टू हैव Deepak Chopra as our guide for this chapter, and he is one of the very beautiful human, एंड बीइंग एन इंडियन वी आर सो प्राउड, लाइक उनके कोट भी मैजिक बुक में आए हैं। सो थैंक यू वेरी मच दीपक जी। सो दीवन पढ़े स्टार्ट कर। जीवन के सबसे जादुई दिन को देखने और अनुभव करने के लिए आप दिन की शुरुआत करने से पहले ही पूरे दिन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका दिन जादुई हो, तो आपको बस अपने दिन भर की योजनाओं पर विचार करना है और उसे जीने के पहले ही उसके अच्छी तरह गुजरने के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। ये बहुत ही आसान काम है और इसमें केवल चंद मिनट ही लगते हैं, लेकिन इससे आपके दिन पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अपने दिन के लिए पहले से ही कृतज्ञ होने से आकर्षण का नियम सक्रिय हो जाता है और आपके दिन को जादुई बना देता है। जब आप अपने अच्छे दिन के अनुभवों के लिए धन्यवाद देते हैं,
तो आपको अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे। हाँ, अब अभी आपके ऊपर है कि आपने अपने दिन को कितना ज्यादा जादुई बनाना है। कुछ कुछ चीजें तो हमें ऑलरेडी पता होती है। मेरी आवाज क्लियर है अंजलि? यस मैम, क्लियर। तो कुछ कुछ चीजें तो हमें पता ही होती है ना कि आज हमारे लिए होनी होनी है। चाहे वो आपका कहीं कुछ खाना है, कि नहाना है, किसी से मिलना है। जैसे कि कल के दिन के लिए जैसे आज मुझे पता है कि एयरपोर्ट जाना है, आज मुझे पता है कि फ्लाइट कैच करनी है, घर पहुंचना है। तो जो भी ये मुझे ऑलरेडी पता है कि ये होने हैं, तो क्या मैं अभी पहले से अपने इरादों को अपने शब्दों में कृतज्ञता के थ्रू घनीभूत कर सकती हूँ? मोस्टली हम लोग नहीं करते। हमें पता ही नहीं है कि इसको बार 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 करने। जैसे कि कल का दिन था, मैंने आई वाज डूइंग माय मैजिकल डे। तो मैंने कि आज सारे जो भी जितने भी पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, प्रैक्टिशनर्स आ रहे हैं, सब अपनी जिंदगी के लिए बहुत बहुत वैल्यू लेके जा रहे हैं। ये तो मेरे को मैंने लिख लिया। पर जो मैं नहीं चाहती थी कि मतलब हर कोई फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, ये मैंने नहीं लिखा, क्योंकि मेरे को लगा ही नहीं कि लिखना चाहिए था। तो और आज का मौसम बहुत अच्छा है, ये भी नहीं लिखा क्योंकि परसों मौसम बहुत अच्छा था। तो अब नहीं लिखा क्योंकि मेरे को लगा ही नहीं कि इसकी कभी जो जो चीजें हम मिस कर जाते हैं कि हमारे, और मोस्टली आप नोट करना, हमारी जो नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं वो होती इसीलिए क्योंकि हमने कुछ चीजों को इग्नोर कर दिया या टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। अगर मेरे को लग रहा था कि हम लोग ओपन में मिलने वाले हैं, तो आई कुड हैव रिटर्न ए लाइन ना, कि मतलब कि आज का कमाल का मौसम होने के लिए, बहुत ही सुहावना मौसम होने के लिए शुक्रिया। एवरीथिंग वाज 100% मैजिकल, बट आई एम जस्ट फाइंडिंग आउट फ्यू थिंग्स सो दैट आई कैन प्रैक्टिस माई सेल्फ टू ग्रो अगेन। कि जब भी हम लोग अगले मीटअप्स करते हैं तो मौसम के लिए भी हम शुक्राना कर सकते हैं। मुझे आई रिमेम्बर लास्ट टाइम वी मेट इन दिल्ली, लोधी में, तो तब यूं था कि उस दिन बारिशों का मौसम चल रहा था, बहुत ठंड का मौसम था। अभी हम दिसंबर में शायद मिले हैं, दिसंबर में मिले हैं, जनवरी, हाँ दिसंबर में मिले हैं। तो मतलब बहुत चिल्ड चिल्ड मौसम था। तो घर से निकलने से पहले आई वाज कि बहुत अच्छा मौसम होने के लिए शुक्रिया, बहुत प्यारी धूप निकलने के लिए शुक्रिया, बहुत ही कोजी कोजी मतलब बिल्कुल सनी डे होने के लिए शुक्रिया। तो आई रिमेम्बर ऑन दैट डे आई डिड दैट। और मतलब कमाल की बात ये थी कि गूगल भी नहीं दिखा रहा था और वैसे भी नहीं, परंतु वहां पर धूप और सूरज आ गए। मतलब 4 बजे तक की मीटिंग में अच्छा मौसम रहा, 4 बजे के बाद ठंड बढ़ी तो अलग बात थी। परंतु कुछ तो दिमाग में पहले से था ना कि इस दिन को अगर हम ऐसा ऐसा बन जाए तो दिन बहुत अच्छा निकले। आप कैसे करते हो? आपने बस दिन भर की योजनाओं पर विचार करना है, और जीने से पहले ही, उस काम को करने से पहले ही, उसके अच्छी तरह गुजरने के लिए जादुई शब्द धन्यवाद। अच्छी तरह गुजरने मतलब कि जैसे आज मीटिंग हुई, सब लोग जब एंड में जा रहे हैं, तो ये तो मैंने सुबह कर लिया था कि सब लोग एंड में जब जा रहे हैं सब कह रहे हैं वाह वाह वाह। तो शाम को जब हम लोग डिस्पर्स कर रहे थे, एवरीवन वाज लाइक वाह वाह वाह। हर किसी की आंखों में ऐसा प्यार था, इतने इतना आभार था, इतना मतलब जादुई जैसा ना, वी हैड मैजिकल डे। हाँ, तो अभी अगर 100 में से 90% मैजिकल है, तो अपने खुद के एक्सपीरियंस के लिए मैं उसमें 10% और क्या डाल सकती हूँ कि वो सच में मतलब मेरे दिमाग में भी 100% हो। तो मैं क्या क्या एक्टिविटीज करने वाली हूँ आज पूरे दिन में, उसको विचारना और उसको ऐसे फील करना। और जितना डिटेल में सोचोगे उतना बेटर है, क्योंकि है ना, हर हर एलिमेंट मैटर करता है। जैसे कल का खाना पीना मैटर करता था फॉर एग्जांपल, तो आई एम वेरी थैंकफुल कि हमारे जो वॉलंटियर्स खाना लाए वो सबको पूरा पड़ गया। मतलब जितने जो थोड़े से भी लेके आए, परंतु सबके लिए वो पूरा पड़ गया। ऑल्दो इट वाज नॉट इन माई विचार, क्योंकि हमें हमें था हम वहीं कैंटीन में जाके खाएंगे, परंतु फिर भी इट वॉज देयर, जो मैंने विचारा नहीं था, परंतु तब भी हो गया। क्यों? क्योंकि वो पहला वाला जो टर्म था कि सब कुछ मैजिकल हो रहा है, वो उसके दौरान में सब कुछ मैजिकल हो गया। नाउ अंडरस्टैंड, यहाँ पर जितना आप अगर ऑफिस में जा रहे हो, अपने बिजनेस में जा रहे हो, बिजनेस के कई एलिमेंट्स होते हैं ना, कि आपका माल ठीक टाइम पे आ गया, पेमेंट ठीक टाइम पे आ गई, आज जितने भी क्लाइंट आए सबको अपने पसंद का सामान मिला, सब खरीद के गए। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अपने दिन को कैसे कैसे डिवाइड करते हो और उस सब में जादू भर देते हो। पढ़े? यदि आपको इस बात का यकीन नहीं है कि आप में अपने दिन की परिस्थितियों को इतने उल्लेखनीय तरीके से प्रभावित करने की शक्ति है, तो ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप चिड़चिड़ी या बुरी मनोदशा में जागे थे। तब आपका दिन शुरू होते ही एक के बाद एक सारी चीजें गलत होती चली गई, तथा दिन के अंत में आप ये कहने के लिए मजबूर हो गए कि आपका दिन बहुत बुरा गुजरा, मानो दिन संयोग से बुरा गुजरा हो। देखिए, आपका दिन सिर्फ इसलिए बुरा गुजरा क्योंकि
आपने सुबह के बुरे मूड को खुद पर हावी होने दिया। दरअसल ये आपकी बुरी मनोदशा ही थी जो एक के बाद दूसरी चीज के गड़बड़ होने के लिए जिम्मेदार थी। तो अगर आपने मैजिकल मॉर्निंग को ढंग से नहीं किया या ढंग से संभाल के नहीं रखा कि हर चीज के लिए आपने शुक्राना ढूंढा, पर वो आप भूल गए बीच में, है ना, कई बार ऐसा होता है, कोई ब्रेकडाउन हो जाता है और आपका मूड खराब हो जाता है, तो उसके बाद वो कास्केडिंग इफेक्ट जिसको हम कहते हैं रिपल इफेक्ट, कास्केडिंग में एक के बाद एक के बाद एक अब वैसी चीजें होनी शुरू हो जाएंगी जब तक कि आप कॉन्शियसली दोबारा से अपने आप को उस एनर्जी में वापस न लेके आओ। आगे। बुरे मूड में जागना भी संयोगवश नहीं होता। इसका अर्थ तो ये है कि आप किसी चीज के बारे में नकारात्मक तरीके से सोचते हुए सोए थे, हालांकि शायद आपको इसका एहसास भी नहीं हुआ था। यही कारण है एक मिनट। कि हाँ, एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखेंगे, आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों कैसे आपस में गेम खेल रहा है। गेम मतलब कोई खेल खेल रहा है। हम जब बोल रहे हैं कि ये बुक जो है पूरी की पूरी साइंटिफिकली डिजाइंड है, जो मैजिक बुक है, तो प्लीज इसको फॉलो वैसे ही करो जैसे कि ये डिजाइंड है। ओके। अब मैं जैसे कई लोगों को अगर रात को मैजिक रॉक बोला गया है तो मैजिक रॉक करो, अगर सुबह काउंट टू ब्लेसिंग बोला गया है तो करो, क्योंकि आपका रात कैसे बीतेगी वही आपके दिन की आपकी रात की फीडिंग जो है, सीडिंग जो है, वो दिन का पेड़ बनाएगी। आपके दिन की सुबह जो है वो आपका मॉर्निंग के साथ साथ आपके आने वाले समय, आने वाले दिन की भी फीडिंग करेगी, सीडिंग करेगी। तो हर चीज एक दूसरे का बीज बो रही है, और जैसा आप बीज बोओगे वैसे ही फल खाओगे। तो मेक श्योर कि आप बड़े कॉन्शियसली अपने रात को सोते हुए, कितने कई बार हमारा सुबह सुबह उठते मूड खराब, अभी तो खैर काफी लोगों का अच्छा होगा, परंतु कितने लोगों का मूड खराब होता था सुबह उठते ही, उठते हाय, ये अलार्म बंद करो प्लीज, कितना शोर मच रहा है, अरे मोटर क्यों नहीं चलाई, अरे गीजर खराब, काइंड ऑफ स्टफ, कि अरे बच्चे लेट हो गए, अरे उठे ही नहीं अभी तक, उठो उठो, और आप मूड खराब से घूम रहे हो घर में। आपको पता ही नहीं, आपने रात को सोते हो, जैसे मैं सोती थी रात को सोते हुए ना, मैं अक्सर रात को सोने से पहले अपने मोबाइल, जैसे हमारा कल इवेंट है, पहले की बात बता रही हूँ, जब हम इवेंट मतलब सैलून इंडस्ट्री में होते थे, तो कल जैसे कोई इवेंट है तो मैं रात से पहले सारी टीम्स को स्ट्रक्चर करना जरूरी होता था। इतने मेकअप आर्टिस्ट जाएंगे, इतने हेयर वाले जाएंगे, इतने ड्रिपिंग वाले जाएंगे, या जो भी जैसा इवेंट है अकॉर्डिंगली। तो अगर सपोज रात से पहले मैंने स्केड्यूल दे दिया कि कल मतलब 10 ये करके ऐसे 25 की टीम जाएगी, सपोज फेमिना मिस इंडिया का शो है, तो वहाँ फेमना वालों पे इतनी जाएगी, वीट वालों पे इतनी जाएगी, या अलग अलग जैसे होती थी। तो अगर वहां पर किसी ने बोल दिया मैडम कल 2 मेकअप आर्टिस्ट छुट्टी पे हैं, मतलब छुट्टी मतलब उनका मैसेज आ गया कि कल कोई प्रॉब्लम, वो बीमार है फॉर एग्जाम्पल, तो वो कल सुबह नहीं आ पाएगी, अगर इतना ही कि 20 के लोगों में से एक बंदा नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्या मतलब है इस बात का, मतलब इनका क्या मतलब है, पूरे दिन सारे महीने, जब इनको मैं कुछ नहीं कहती हूँ, अब इवेंट के ऊपर इज्जत की बात होती है, अगर टीम पूरी नहीं गएगी तो वहां पर स्लो डाउन हो जाएगा काम, वहां पर मुश्किल हो सकता है काम। और ये वाली लड़की, क्योंकि कई लड़कियों को हम ट्रेन करके रखते हैं लुक के लिए ना, रेफरेंस लुक्स होती है कि तुमने ये वाली लुक तुम संभालोगे वहां पर, तो वो रेफरेंस लुक वाली वो लुक तो इसी को सिखाई थी, अब यही नहीं आएगी तो बाकी लोगों को कैसे करवाएगी काम, ऐसे करके ओ हो। मतलब जब मैसेज के ऊपर टाइप कर रही हूँ, चाहे मुंह से बोल रही हूँ, चाहे वॉइस मैसेज भी बोल रही हूँ, मतलब जो भी डांटना होता था डांटती थी। और ये जो भी हमने कुछ भी करके उसको उठा के लाओ, घर से लेके आओ उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे करके जो भी कर कर आके, तो मैनेज करते करते ही सो जाती थी। अब मैं सो गई, हाँ, मतलब कि, और उस समय क्या मैं मैजिक, नहीं नहीं पुरानी बातें बता रही हूँ मैं आपको, तब मैजिक रॉक या ग्रेटिट्यूड कुछ नहीं होता था मेरी लाइफ में। तो मतलब ऐसे ही करके सो गई। अब सुबह भी उठी हूँ ना तो दिमाग में वही चल रहा होता था कि मतलब टीम पहुंचेगी कि नहीं टाइम के ऊपर, अभी तक पहुंची नहीं है, अरे यार इतना बड़ा इवेंट है, अरे ठीक टाइम पे पहुंचना जरूरी है, इतने सारे मॉडल्स हैं, 3 चेंजेस हैं, यूं दिमाग में चली जा रहा है चली जा रहा है। सुबह उठते भी यही चल रहा है, फिर दिन भर में भी वही चल रहा है, फिर रात को वापस आई तब भी यही चल रहा है दिमाग के अंदर कि आज ये हुआ वो नहीं हुआ। आप में से कितने लोगों ने देखा है कि आपके बिजनेस में कोई ब्रेकडाउन हो गया और आप रात को सोते से पहले अगर वही बात सोच रहे हो, तो रात को सपनों में भी कई बार वैसी चीजें आ जाती हैं, नॉट एग्जैक्टली सेम बट नेगेटिव। मतलब जैसे आपको आके सांप डरा रहा है या आपको आके कोई भूत डरा रहा है, या आपको मतलब कुछ ना कुछ डरावनी चीज, समथिंग विच इज नॉट पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि आपने सोने से पहले जो सोच ली है वो पॉजिटिव नहीं थी, इसलिए वो वैसी ही फीडिंग सारी रात दिमाग में चल रही है, और अब आपका सुबह भी वैसे, दिन भी वैसा, जिंदगी भी वैसे, जब तक कि आप इस पैटर्न को चेंज नहीं करोगे। कैसे चेंज करना है, ध्यान से सीखिए, पढ़े। यही कारण है कि आप रात को जादुई पत्थर का अभ्यास सबसे अंत में करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि सोते समय आपके मन में अच्छे विचार ही रहें। रात का जादुई पत्थर अभ्यास जब हर सुबह के अपनी नियामतें गिने अभ्यास के साथ जुड़ जाता है, तो आप रात और सुबह
दोनों ही समय अच्छी मनोदशा में रहते हैं। इस तरह यह सुनिश्चित हो जाता है कि आप दिन शुरू करने से पहले ही अच्छा महसूस करें। मैम नेक्स्ट पेज। जादुई दिन। जादुई दिन पाने के लिए आपको अच्छा महसूस करने की जरूरत होती है। मैं कृतज्ञता के अलावा किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं जानती जो लगभग तुरंत आपकी मनोदशा को बेहतर बनाने की गारंटी देता हो। मतलब मैं अभी सेम बोलूंगी, देर मस्ट बी सो मेनी थिंग्स, मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट मैं नहीं जानती हूँ। मतलब मैंने आज तक इतना फास्ट रिजल्ट आते हुए, और बहुत फास्ट रिजल्ट तो एक चीज होती है, मतलब कि किसी भी सिचुएशन के अंदर मैं कितना भी मूड खराब हो, कितनी भी लड़ाई कर रखी हो, कितना भी नेगेटिव हूँ, डाउन द लाइन हूँ, कुछ भी हो, पर अगर मैं उस समय अपने आप को फोकस कर पाऊँ और ग्रेटिट्यूड के ऊपर ही फोकस कर पाऊँ, तो मेरा इंस्टेंटली मूड चेंज होता है। मैंने कई बार देखा है। जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो मानेंगे इस बात को। और कई बार हम मूड शिफ्टर्स भी यूज करते हैं कि अगर मैं सोच में तो चेंज कर ही रही हूँ, कुछ बाहर से भी चेंज कर सकती हूँ। मतलब बाहर से क्या चेंज करना है, जैसे मैंने बताया सेंसेस को एक्टिवेट कर लेते हैं, कई बार हम कुछ खा लेते हैं, सूंघ लेते हैं, देख लेते हैं, सुन लेते हैं, कुछ ऐसा जो हमारे को थोड़ा सा ऊपर अप मतलब लाइन से ऊपर जाने में हेल्प करे, पॉजिटिविटी में आने में हेल्प करे। तो पर वो भी हम ग्रेटिट्यूड के साथ ही करते हैं, एंड दिस इज गारंटेड फास्टेस्ट वे। आगे। आज आपके दिन की जो भी योजनाएं हो, चाहे यह यात्रा करना हो, मीटिंग, वर्क प्रोजेक्ट, लंच, व्यायाम, ड्राई क्लीनिंग के कपड़े डालना, मैच खेलना, थिएटर जाना, किसी मित्र से मिलना, योगाभ्यास करना, घर की सफाई करना, स्कूल जाना या किराना खरीदना हो, जादुई शब्द धन्यवाद कहकर आज को एक जादुई दिन में बदल लें, ताकि हर योजना अच्छी तरह अमल में आ जाए, इससे पहले कि आप उसे सचमुच जिएं। मतलब कोई भी काम करने से पहले, जैसे हमने आपको जब इस सेशन स्टार्ट हुआ था डे 0 से पहले बताया था कि अपना एक टू डू लिस्ट बनाना, पूरे दिन में आप अच्छा क्या क्या करने वाले हो, जो आपको ऑलरेडी पता है। कुछ इंस्टेंट हो जाएंगे तो वो अलग बात है ना। तो पूरे दिन की एक रैंडम लिस्ट बना लेना। अब वो लिस्ट आपने जो बनाई थी उसको क्या करना है वो आज आप सीखिए, कि उसके अंदर कैसे आपने ग्रैटिट्यूड इंस्टिल करना है। पढ़े। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हर दिन किए जाने वाले काम की सूची बनाते हैं, तो आप अपनी दैनिक सूची पर नजर डाल सकते हैं और हर चीज के अच्छी तरह होने के लिए पहले से ही कृतज्ञ हो सकते हैं। चाहे आप यह जादुई अभ्यास मन में करें या कागज पर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह महसूस करना है कि आपकी हर योजना या गतिविधि के परिणाम सर्वश्रेष्ठ रहे। जब आप जादुई दिन के लिए पहले से कृतज्ञता का इस्तेमाल करते हैं, तो अप्रत्याशित समस्याएं या मुश्किलें आने से पहले ही खत्म हो जाती हैं। आप इस जादुई अभ्यास का जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, आपके दिन उतने ही बेहतर गुजरेंगे। छोटी छोटी से लेकर महत्वपूर्ण चीजों तक आपके जीवन की सारी चीजें अच्छी तरह होने लगती हैं। मुश्किल दिन आसान हो जाते हैं और कुंठाजनक या समस्याजनक चीजें सामने आने के बजाय आपके दिनों में जादुई प्रवाह आ जाता है और सब कुछ जादुई ढंग से आपकी इच्छा अनुसार होने लगता है। इसमें प्रयास कम करना पड़ता है, चिंता कम होती है, तनाव नहीं होता और खुशी कहीं अधिक मिलती है। तो वेरी सिंपल। आप चाहे दिमाग में सोचो कि आप अभी मीटिंग पे जा रहे हो, या क्लाइंट के साथ डील करने जा रहे हो, या बच्चों को घुमाने पढ़ाने जा रहे हो, जो भी कर रहे हो, और करने से पहले वैसे पूरे दिन की अगर आप पहले बना लोगे ना, तो दिस इज कॉल्ड जो टाइम लैप, मतलब इतना बड़ा दिन आपने पहले से डिजाइन कर लिया अपने लिए। जैसे कि कुछ कुछ चीज तो पता है ना, बच्चों को स्कूल से लाने जा रही हूँ या उनको पढ़ाने बैठूंगी आज मैं, वगैरह वगैरह जो भी है, तो उनको पहले से लिख लो। अब देखो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ लिख लो, क्योंकि सोचते सोचते अलग बात होती है, आप कुछ स्किप भी कर सकते हो। लिखने में कितना टाइम लगता है, हार्डली। आप चाहे फोन पे लिख लो अपना खुद का सेल्फ ग्रुप बना के, फोन पे लिख लो, नहीं तो आप सामने लिख लो, अपना कॉपी पे लिख लो। और बस जो 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 लिखा है उसको बस आपने एक मतलब कुछ सेकंड्स के लिए इमेजिन करना है कि आप उस बच्चों को स्कूल लेने गए, वापसी पे आप लोग कितना हंस रहे हो, कितना खुश हो रहे हो, कितना मजा आया, स्कूल से वापस आते हो इतनी अच्छी अच्छी बातें करी हमने। बस आपने इमेजिन किया, हाँ, उस टास्क के आगे थैंक यू लिख दो। जैसे जैसे आप इमेजिन करते हैं कि आपके दिमाग में चेकलिस्ट कट 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 होती चली जाएगी ना, कि ये काम हो गए,
तो जैसे कोई मीटिंग है, आपको सपोज कोई डिजाइनर हो, तो आपने कोई डिजाइन, जैसा वो होता है डिजिटल, आपने कोई वीडियो बनाई, रील बनाई, आपने पोस्ट करनी है, तो आपने पोस्ट करी और वो बहुत अच्छा रिजल्ट आया, बहुत अच्छे लोगों ने उसको लाइक्स करे, बहुत अच्छे इंपैक्टफुल रही वो रिजल्ट, जो भी आपने डाला होगा पोस्ट अपनी, और वो फील कर लो, ठीक है, आज मैंने दिन में आज रीले पोस्ट करनी है, फील करा, हाँ, इमेजिन किया कि बहुत अच्छा रिजल्ट आया, हाँ, उसके आगे टिक कर दो कि हाँ थैंक यू, मतलब कि आपने अपना काम कर दिया अपनी इमेजिनेशंस के अंदर। आगे। जब मैंने पहले पहल जादुई दिन के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैंने अपने दिन की उन घटनाओं के लिए पहले से धन्यवाद देने का चुनाव किया, जिन्हें करना मुझे बहुत आनंददायक नहीं लगता था। उनमें से एक सुपरमार्केट जाने का काम था। दिन की शुरुआत में मैं जादुई शब्द कहती थी, सुपरमार्केट की आसान और सुखद अ, यात्रा सुपरमार्केट की आसान और सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि सुपरमार्केट की यात्रा आसान और सुखद कैसे हो सकती है, लेकिन मैंने परिणाम के लिए यथासंभव अधिकतम कृतज्ञता महसूस की। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का परिणाम ये हुआ कि मुझे गेट के ठीक सामने पार्किंग की जगह मिल गई। मुझे 2 सहेलियां भी मिल गईं। उनमें से एक से मैं काफी समय से नहीं मिली थी और शॉपिंग के बाद हमने एक साथ लंच किया। जिस दूसरी सहेली से मैं मिली, उसने मुझे एक अद्भुत और किफायती हाउस क्लीनर के बारे में बताया। संयोग देखें, मैं ऐसे ही हाउस क्लीनर के सपने देख रही थी। सुपरमार्केट में खरीदारी के दौरान मैंने जहां भी नजर डाली, मेरी जरूरत की हर चीज जादुई रूप से मेरी नजरों के सामने मौजूद थी। हर चीज शेल्फ पर थी और स्टॉक में थी। एक के बाद एक सभी सामान किफायती और विशेष दरों पर उपलब्ध थे। और जब मैं रिकॉर्ड टाइम में खरीदारी करने के बाद चेकआउट काउंटर पर पहुंची, तो एक नया काउंटर खुल गया और चेकआउट क्लर्क ने मुझे अपनी ओर बुला लिया। जब क्लर्क मेरे लिए सामान को कंप्यूटर पर दर्ज कर रहा था, तो अचानक उसने पूछ लिया, क्या आपको बैटरियों की जरूरत है? यह मैम नेक्स्ट पेज। एक ऐसा सामान था। यह एक ऐसा सामान था जिसे खरीदना मैं भूल गई थी। सुपरमार्केट की मेरी यात्रा आसान और सुखद से भी परे थी। ये तो दरअसल जादुई थी। हाँ, तो आपने जो भी काम करना है, देखिए कुछ टास्क तो ऐसे होते हैं जो कि आपके लिए ओके टास्क है, ओके मतलब ठीक है, ना बुरे ना अच्छे, मतलब आपके लिए ओके हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, आपको करने में मजा आता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपके लिए बहुत बोरिंग होते हैं, या मतलब इतने एक्साइटिंग नहीं होते हैं। कुछ काम काम ऐसे भी होते हैं, जैसे कि कुछ भी, चाहे वो किचन में खाना बनाना हो, चाहे वो बॉस से मीटिंग हो, चाहे कुछ शॉपिंग करने जाना है, या किसी को डॉक्टर के पास लेके जाना है ना, ऐसे टास्क भी होते हैं। पर जो भी है, अगर आपको पता ही आपने करना है, जैसे कि डॉक्टर के पास लेके जाना है मम्मी को, पापा को, या बच्चों को, या अपने आप को, जिसको भी लेके जाना है, वो भी लिख लो, माई विजिट टू डॉक्टर, है ना। अब आप ये चाहते हो ना कि डॉक्टर के साथ विजिट बहुत अच्छी रही, वहाँ जो भी आप चाहते हो, आप जानो आप उसमें क्या रिजल्ट चाहते हो, तो वो आप फील करो पहले से कि बहुत अच्छा होने के लिए शुक्रिया, मेरी डॉक्टर के पास विजिट का बहुत अच्छा और सुखदायी होने के लिए शुक्रिया। एंड जस्ट सी क्या हो सकता है उसके मतलब आपका काम बस उसमें मैजिक को इंक्लूड करना है। आगे तो जो होना है वो यूनिवर्स ने करना है। आगे। जादुई दिन पाने की कृतज्ञता का इस्तेमाल करने में सुबह केवल चंद मिनटों का ही समय लगता है। जब आप पहले से ही अपने दिन की घटनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन केवल यह अभ्यास ही आपके पूरे दिन की घटनाओं को बदल देगा। करना क्या, कई लोग ना कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैडम मैजिकल डे में और मैग्निफिसेंट आउटकम में क्या फर्क होता है। तो पहले यहाँ पे ध्यान से पढ़ लो जरा 1 मिनट। क्या अपने पूरे दिन को प्री डिजाइन करना है। प्री डिजाइन का मतलब होता है जो भी दिन भर में आप काम करने वाले हो ना, अपने दिन की सारे इवेंट्स को, घटनाओं को, कि आज मैंने अपने पति के साथ शॉपिंग पे जाना है, या मैंने बच्चों को पढ़ाना है, या मैंने, अब मुझे आपको अपने पूरे दिन की टू डू लिस्ट बनानी है। ओके, ये आपका काम है पहले करना। और जो जितना भी समझ आ रहा है उतना कर लो। आप कम भी लिख सकते हो, ज्यादा भी लिख सकते हो, कोई पैसे थोड़ी ना लग रहे हैं तुम्हारे, है ना। तो जितना ज्यादा भी अगर आपको लग रहा है कि पता नहीं आज जाऊंगी कि कल जाऊंगी, पता नहीं, लिख दो, कोई बात नहीं, है ना। और अब उसको सबको सबको आपने बस एक थोड़े सेकंड के लिए उन सब में ग्रैटिट्यूड फील करना है। तो दिन भर की घटनाओं के लिए पहले से ही धन्यवाद देना है। ये इतना इजी काम होता है। और करना कैसे, एक बार दोबारा आगे पढ़ लेते हैं, पढ़ो।
जादुई दिन पाने के लिए सुबह उठते समय या तो बिस्तर छोड़ने के ठीक पहले या फिर नहाते या कपड़े पहनते समय दिन की योजनाओं के बारे में सोचें और प्रत्येक के अच्छी तरह होने के लिए धन्यवाद दें। यह सुनिश्चित ये करें आप चाहें तो फोन पे भी कर सकते हो अपना सेल्फ ग्रुप में ना। जैसे हमने पिछली बार आपको वो भी भेजा था, जैसे कि हर आवर का मैंने प्लानर बना के भेजा था, मतलब ब्लैंक मैसेज दिया था, उसको कॉपी करो, पेस्ट करो अपने ग्रुप के ऊपर, सेल्फ ग्रुप के ऊपर, और वहां पे आगे लिख दो कि भैया अच्छा, जैसे जैसे मुझे पता है, फॉर एग्जांपल आज मेरी इतने बजे की फ्लाइट है, तो उतने पीएम के आगे मैं लिख दूंगी बोर्डिंग द फ्लाइट वेरी वेल, या हैविंग अ गुड टाइम एयरपोर्ट, या हैविंग अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी फ्रॉम ये जहाँ पे मैं हूँ वहां से एयरपोर्ट तक जाने के लिए। तो अब अगर मैं पहले से इमेजिन कर रही हूँ कि ओके वाओ वी मैम, हैड अ वॉइस वेरी ब्रेक होने गुड लगी आपकी। time and breakfast, we had a good time while living this place। अभी आ रही है? आप हाँ पढ़ो जी। पढ़ो पढ़ो, अंजलि पढ़ो। ओके मैम। यह सुनिश्चित करें कि आप यह जादुई अभ्यास सुबह सुबह ही कर लें और एक सत्र में पूरा कर लें। मन ही मन उन सभी कार्यों के सुखद परिणाम देखें जो आप सुबह, दोपहर और शाम को करते हैं, जब तक कि सोने का समय नहीं हो जाता। हर योजना या घटना के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और आप बेहद कृतज्ञ हैं क्योंकि आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। क्लियर है अधिक सबको क्या करना है? मैंने मेरी आवाज, हाँ जी मैम, अंजलि आवाज क्लियर आ है। रही है? यस मैम। ठीक है, तो आई होप यू ऑल आर क्लियर। अब मैं हाईली सजेस्ट करती हूँ रिटर्न में बनाना टू डू लिस्ट अपनी, रिटर्न के अंदर, चाहे कॉपी पे बनाओ चाहे फोन पे बनाओ। दिन भर में जो 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 काम पता है उन सबको आप पहले वहां पर लिख लो, है ना। और उस जैसे सब इमेजिन करते जा रहे हो, तो मैं इमेजिन कर रही हूँ कि बहुत अच्छी हमारी यात्रा रही एयरपोर्ट तक जाने के लिए, मैंने इमेजिन कर ली, हाँ कि हम सब लोग बहुत खुश हैं, खा पी रहे अच्छे रहे हैं, तो उसके आगे मैं लिख दूंगी, या टिक लगा दो, या थैंक यू, जो भी शॉर्ट, आपको बस आपको पता रहना चाहिए कि इस गतिविधि को आपने कृतज्ञता के जादू से सराबोर कर दिया है, बस दिस इज इट। आगे। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप जितने चाहें श्रेष्ठतम विशेषणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अविश्वसनीय रूप से सफल मीटिंग के लिए धन्यवाद। फोन कॉल के अद्भुत परिणाम के लिए धन्यवाद। ऑफिस में बेहतरीन दिन के लिए धन्यवाद। रोमांचक मैच के लिए धन्यवाद। सफाई के प्रयास रहित और आनंददायक दिन के लिए धन्यवाद। मित्रों के साथ बेहतरीन शाम गुजारने के लिए धन्यवाद। यात्रा के आरामदेह दिन के लिए आपको धन्यवाद। व्यायाम से प्राप्त आश्चर्यजनक ऊर्जा के लिए धन्यवाद। सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक मिलन समारोह के लिए धन्यवाद। यदि आप हर अनुभव पर हाँ, तो आप जोर चाहो से तो उसके अंदर इसको पावर वर्ड्स, अंजलि आवाज आ रही है? हाँ जी मैम। अंजलि आवाज, तो आप चाहो तो उसमें ये पावर वर्ड्स भी यूज कर सकते हो, जैसे फैंटास्टिक, वंडरफुल, अमेजिंग, ऑसम, यू नो। इनसे आपका जो कृतज्ञता का भाव होता है वो और भी गहरा चला जाता है पॉजिटिवली। तो ये सब वर्ड्स हिंदी में आप देखिए, रो बेहतरीन, आनंददायक, वाओ, ब्लिसफुल, इस तरह से जो भी वर्ड्स आपको डालने हैं। तो अब मतलब कई बार ये वर्ड्स की वजह से भी आपकी जो फीलिंग्स है वो बहुत गहराई तक पहुंचने में हेल्प हो जाती है। ठीक है, आगे। यदि आप हर अनुभव पर जोर से जादुई शब्द धन्यवाद बोल सकें, तो यह जादुई अभ्यास अधिक शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन यदि आप उन्हें जोर से बोलने की स्थिति में ना हो, तो मन ही मन बोलना भी ठीक है। जब मैं आप आपको दिन के सजेस्ट फोन के ऊपर ही बनाओ ये लिस्ट, और टॉयलेट में बैठे बैठे ही बोल दो। जैसे सुबह सुबह वॉशरूम जाते ही हो तो एक बार सोच लो, बैठे बैठे वहां पर टॉयलेट सीट पे, कि क्या क्या काम करने हैं वो लिख लो अपने फोन के ऊपर। और वाओ, मेरी बॉस के साथ एक्सीलेंट, बहुत ही अप्रिशिएटिंग मीटिंग होने के लिए धन्यवाद। वाओ, कुलीग्स के साथ बहुत ही मजेदार लंच करने के लिए, मजेदार फ्रेंडली लंच करने के लिए, जो भी आप वर्ड स्पीच में डालना चाहते हो, एक्सीलेंट, अमेजिंग, वो डालो बीच में, है ना। और हो सकता है टॉयलेट में बोलकर, या मन ही मन सोचकर बोलकर भी, जैसे आपको ठीक लगे वैसे उसको मैजिकली फिल कर दो। आगे।
जब आप दिन के हर काम और घटना के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल पूरा कर लें, तो इस अभ्यास के अंत में कहें, और आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। यहाँ से शुरू होती है सबसे कमाल की प्रैक्टिस हमारी लाइफ की। थैंक यू फॉर द गुड न्यूज कमिंग माई वे। अब देखिए, हर कोई चाहता है मेरी जिंदगी में गुड न्यूज आए। कितने लोग चाहते हो? लिखो गुड न्यूज। यू रियली राइट डाउन गुड न्यूज, कि आपको अच्छा लगता है जब कोई अच्छी खबर मिलती है, गुड न्यूज मिलती है, मतलब आपके आपकी जिंदगी के अंदर। मतलब येस्टरडे व्हेन आई वाज डूइंग दिस असाइनमेंट, मैंने ये देखा है कि मैं असाइनमेंट करती तो हूँ, पर मैं बीच में कई इवेंट्स जो है मेरे दिमाग से स्किप हो जाते हैं, या मतलब मैं उनको इमेजिन शुरू से दिन के शुरुआत में ही डिटेल्स के अंदर नहीं करती। मुझे पता होता है 5-6 इवेंट, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ कि मेरे को एयरपोर्ट जाना है, मेरे को रास्ते का सफर करना है, हाँ मेरे को ये पता है, पर मैं ये नहीं बीच में बात कर रही कि हम खाना खाने के लिए रुके तो बहुत ही बढ़िया लंच किया, बहुत ही टेस्टी लंच था, नरिशिंग लंच था। और मोस्टली जो मेरे ब्रेकडाउन होते हैं वो इस बारे में होते हैं कि चाय ठंडी क्यों थी, या ये बड़ा क्यों था, जो मैंने पहले से इमेजिन ही नहीं करे और जिसमें मैंने ग्रेटिट्यूड पहले से डाला ही नहीं है। तो आप अपनी जिंदगी के देखो, ये नहीं कि मैं एक्सरसाइज नहीं कर रही, पर मैं डिटेलिंग के अंदर कहीं कहीं चीजें मिस कर जाती हूँ। तो वही चीजें होती हैं जो मेरी बाद में पेन पॉइंट बन जाती हैं। तो आप देखो आपने क्या क्या मिस किया जिसकी वजह से आपका। तो येस्टरडे आई वाज वेरी क्लियर कि मैं अपने फ्रेंड को मैसेज करूंगी, बिकॉज मैंने सुबह बोला कि ऐसे ऐसे हम इस साल में 52 करेंगे अपना पॉडकास्ट, या हम अपने मतलब ऑनलाइन प्रेजेंस को और पावरफुल बनाएंगे, ताकि मैजिक का या शुक्राना का और ज्यादा लोगों की जिंदगियों तक पहुंचना पॉसिबल हो पाए। तो मेरी फ्रेंड एक है, वो करती है पॉडकास्ट ना, तो मैंने उसको मैसेज किया जस्ट कि बताओ मतलब हाउ कैन वी बोथ डू इट टुगेदर। एंड उससे जब मैं मैसेज कर रही थी उससे पहले मैंने उसके वहां पर मतलब जब अपने मन मन में सोच लिया कि वो मुझे कर रही है वापस रिप्लाई, और मतलब बहुत अच्छा रिप्लाई रहा, बिकॉज आई वॉज अ लिटिल कंफ्यूज कि पहले कंफ्यूजन देखो होती है हमेशा कि वो करती भी है ये वाला काम, क्योंकि वो सिर्फ मिनिस्टर्स का, हाई प्रोफाइल सेलेब्स का, मतलब नॉर्मली मिनिस्टर्स या मतलब काफी हाई एंड करती है वो पॉडकास्ट ना। तो मेरे को यही लगा कि यार मतलब पता नहीं उसकी क्या स्ट्रैटेजी है या क्या उसके प्रोटोकॉल्स हैं। तो मैंने कहा चल मैसेज तो करती हूँ फिर देखा जाएगा। तो ऐसे करके, पर मैंने मैसेज भेजने से पहले I, 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 मैंने उसको ये बेहतरीन आउटकम मतलब इसके अंदर की बहुत अच्छा मैसेज गया, चलो भेज दिया। तो एंड इन द मॉर्निंग आई वाज रियली लाइक कि हाँ अब हमने अगर करने हैं पॉडकास्ट तो शी इज अ गुड गुड प्लेटफॉर्म फॉर रीचिंग आउट टू मासेस एंड ऑल। तो जब मैंने मैसेज किया विद इन फ्यू मिनट्स, मतलब जब भी किया उसके बाद उसका रिप्लाई आ गया कि मतलब जो भी वो शी वाज वेरी एक्साइटेड एंड शी सेड लेट्स डू समथिंग बिग, मतलब बिगर देन पॉडकास्ट। एंड बिकॉज जो भी मतलब जो तुम करते हो इंस्टा पे या फेसबुक पे, तुम मुझे भेज अपना, मैं देखती हूँ तेरा पेज, एंड देन आई विल गेट बैक टू यू एंड वी विल डू मच बिगर देन दैट। तो आई वाज लाइक रियली एक्साइटेड कि तुमने एक चीज करने से पहले उसको बस पॉजिटिवली सोचा, आपने थैंक यू करा और आपने वो चीज को इनिशिएट करा, एंड हाउ ब्यूटिफुली इट एक्सपेंडेड। मतलब वो एक्सपेंड क्यों करेगी? क्योंकि तुमने उसमें पॉजिटिव एनर्जी डाली है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी मैम, आ रही है। मोबाइल डाटा डाल दो। अच्छा अब आप पढ़ो, कैसे बीच में ब्लर होती है। ओके। पढ़ो पढ़ो। बिना नागा हर सुबह जब मैं जादुई धुन पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करती हूँ, तो उस दिन बेहतरीन खबर मिलने के लिए धन्यवाद देती हूँ। यकीन मानिए, इसके बाद मुझे इतनी बेहतरीन खबरें मिली जितनी कि जीवन में पहले कभी नहीं मिली थी। एक के बाद दूसरे सप्ताह, एक के बाद दूसरे दिन बेहतरीन खबरें आती रहती हैं। हर बार जब मुझे कोई नई बेहतरीन खबर मिलती है, तो मैं खास तौर पर कृतज्ञ और रोमांचित होती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसे आकर्षित करने के लिए मैंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया था, और परिणाम ये होता है कि इसके बाद उससे भी ज्यादा अच्छी खबरें आती रहती हैं। यदि आप बेहतरीन खबर पाना चाहते हैं, तो बस मेरे कदमों का अनुसरण करें। तो क्या करना, मेरी आवाज आ रही है अंजलि? यस मैम। तो बहुत ही इजी है, सिंपल है, बड़े ही कमाल के एक्सरसाइज है। आपने आज दिन भर की जितनी भी मैम चीजें हैं उसको आपने कृतज्ञता में सर्कल पहले चढ़ा दिया है ना, कि लाइक थैंक यू। गई? मैम बीच में ब्रेक हो जाते हैं, एक दो वर्ड्स फिर ठीक आने बोल लगते हैं। अंजलि। अंजलि मैम मेरी आवाज आ रही है?
सर तुम पहले अभ्यास पढ़ लो, मैं एक ही बार में पढ़ूंगी। हाँ जी। अभ्यास पढ़ो। जादुई हाँ अभ्यास पढ़ो क्रमांक पढ़ो। जादुई अभ्यास क्रमांक 14। अपने दिन को जादुई बनाए। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, सुबह सुबह मन ही मन सुबह से लेकर रात तक की अपनी योजनाओं के बारे में सोचें। हर योजना या घटना के बारे में सोचें कि वह अच्छी तरह हुई है और उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और इसके आदर्श ढंग से गुजरने पर बेहद कृतज्ञ हैं। नंबर 3, जब आप पूरे दिन की बेहतरीन तरीके से होने वाली सारी घटनाओं के लिए कृतज्ञ हो लें, तो इस जादुई अभ्यास के अंत में कहें, और उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच अंजलि। आवाज क्लियर है मेरी? चलिए, मैं अपने हाँ जी। इंटरनेट के लिए भी अपने मॉर्निंग, वाओ, मेरे बेहतरीन इंटरनेट कनेक्शन के लिए शुक्रिया। मेरी आवाज का बहुत इजीली जूम के हर पार्टिसिपेंट के लिए शुक्रिया। So thank you very much for the beautiful internet and mobile data support. Thank you. अब मेरी आवाज क्लियर यस क्लियर? मैम। थैंक यू वेरी मच। सो थैंक यू। ये फर्स्ट और फोर्थ जो है हमारा सेम असाइनमेंट है। अब करना क्या है, सुबह सुबह, अच्छा शुरू शुरू में आई प्रेफर कि लिख के ही करना सब लोग, है ना। मैं ये चॉइस दे रही हूँ कि कॉपी में लिख के करो चाहे फोन पे लिख के करो, ठीक है, आपकी मर्जी है। और सुबह से लेकर रात तक में क्या क्या करना है, अगर आपको ब्रेकफास्ट भी करना है, लंच भी करना है, डिनर भी करना है, चाय भी पीनी है, तो ठीक है, फाइन। कि बेहतरीन लंच के लिए शुक्रिया, बेहतरीन बहुत पौष्टिक डिनर के लिए शुक्रिया, जो भी आप करना चाहते हो। अगर आपको कपड़े धोने हैं, प्रेस करने हैं, तो उसके लिए कर लो। हाउस वाइफ के लिए बोल रही हूँ। कब बर्तन धोने हैं, बर्तन स्टैकिंग करनी है, उसके लिए कर लो। अगर झाड़ू पोछा करना है, उसके लिए कर लो। आज बहुत बेहतरीन घर की सफाई होने के लिए शुक्रिया। बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, लाना है, करना है, कर लो। जो भी बाहर के काम है, मार्केट जाना है, शॉपिंग करनी है, फलाना सीरियल देखना है, फलाना ये काम करना है, जो भी आप चाहते हो कि वो अच्छा बीते। जो बिजनेस वाले हैं वो देखो दुकान पे आपके क्या क्या या शोरूम में क्या क्या काम होते हैं, बट ठीक टाइम पे शॉप पे पहुंचने के लिए शुक्रिया। बहुत अच्छे पार्टनर के साथ बहुत अच्छी बातचीत होने के लिए शुक्रिया। क्लाइंट्स के साथ बहुत अच्छी इंटरेक्शन होने के लिए शुक्रिया। क्लाइंट्स का हमारे सामान को पसंद, जो आप चाहते हो कि आपका दिन ऐसे ऐसे बीते, क्योंकि बहुत अच्छी पेमेंट्स का ठीक टाइम पे आने के लिए शुक्रिया। जो सैलरी वाले हैं, जॉब वाले हैं, वो सोचो क्या क्या करना है कि आज ठीक टाइम पे काम खत्म कर पाने के लिए शुक्रिया। बॉस के साथ बहुत अच्छी मीटिंग होने के लिए शुक्रिया। कुलीग्स के साथ बहुत ही एडजस्टिंग एंड कोऑपरेटिव रिलेशन होने के लिए शुक्रिया। जो आप चाहते हो, है ना, कि दिन में आपके ये हो। अगर आप कैब्स करते हो तो वाजिब दाम पे कैब्स के मिलने के लिए शुक्रिया। ठीक टाइम पे ऑफिस पहुंचने के लिए शुक्रिया। ऐसे करके जो आपको पूरे दिन के बारे में पता है कि आज आपके साथ ये होने वाला है, लिख लो। और फिर हर एक घटना, एक एक जो होने वाली इवेंट एक्टिविटी, उसको पढ़ के उसके लिए मतलब वाओ, उसके अंदर थोड़ा सा जोश डालो, थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड डालो, थोड़ा पावर वर्ड्स कहते हैं, जैसे कि ये जो थोड़े एक्सीलेंट, फैंटास्टिक, वंडरफुल, अमेजिंग, ऑसम, वाओ, मतलब गॉर्जियस, टाइप्स, जो ये वाले वर्ड्स होते हैं। तो मतलब जिसमें ये पावर वर्ड क्या होते हैं, इस पर हम बाद में कभी बात करेंगे, नेगेटिव पावर वर्ड्स क्या होते हैं और पॉजिटिव पावर वर्ड्स क्या होते हैं। पर अभी तो बुक ने थोड़ा बहुत सजेस्ट किया है, तो उसी को फॉलो करो, ठीक है। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड एंड वंस यू फिल, अभी वो इवेंट हुए नहीं है पर आप पहले से उसके लिए थैंकफुल हो, है ना। तो ऐसे हम एक्टिवेट करते हैं अपनी जिंदगी के अंदर अनसीन। अगर आप अभी जो चीज हुई नहीं है पर आपने इमेजिन करी है कि वो हो रही है और आप उसके लिए थैंकफुल हो, दैट्स हाउ यू एक्टिवेट द गुड न्यूज कमिंग इन योर लाइफ। क्योंकि वो अभी आई नहीं है पर आने के लिए आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। तो उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है। थैंक यू फॉर द वंडरफुल न्यूज और ग्रेट न्यूज और गुड न्यूज कमिंग माई वे। ठीक है, तो आपको जिन जिन को भी गुड न्यूज चाहिए होती है अपनी लाइफ में, तो वो क्यों नहीं आ रही होती, क्योंकि आप पहले जो दिन भर की खबरें हैं, दिन भर की इवेंट है, उनमें गुडनेस डालना भूल जाते हो। तो अगर आपने गुड न्यूज का सर्कल चलाना है, तो आपको पहले क्या करना है, सारे दिन भर की पहले लिख लो इवेंट्स और उन सब के अंदर गुडनेस डाल दो।
शुक्राना डाल दो, और फिर इसके लिए भी शुक्राना कर लो, थैंक यू फॉर द गुड न्यूज कमिंग माई वे। ठीक है, तो आई होप इट्स वेरी इजी, बट कमाल का दिन है यही दिन, जो दिन भर की एक्टिविटीज है यही आपकी लाइफ में इतनी गुड न्यूज को अट्रैक्ट कर पाएगी, यू विल बी अमेज्ड। मतलब फॉर मी मतलब जितना भी मैम ये नहीं कह रही हूँ कि मैं इसको 100% सेक्रोसेंटली कर पाती हूँ, पर जितना भी कर पाती हूँ आई एम रियली थैंकफुल, एंड आई नो आई कैन डू बेटर, आई कैन डू मच बेटर इन माई प्रैक्टिसेस। सो आप देखो आप अपने दिन को, अपनी जिंदगी को कैसे जादुई बना सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन द जर्नी, थैंक यू फॉर प्रैक्टिसिंग, थैंक यू फॉर मेकिंग योर टू डू लिस्ट। आप सबके उस पे वो दोबारा से डाल देना, मैंने वो जो 24 घंटे का आवरली प्लानर दिया था, ताकि आप उसी में कॉपी पेस्ट करके, नहीं तो फोन पे तो वैसे ही कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चन बिफोर वी साइन ऑफ? So thank you Anjali, thank you Sarita ji, thank you Acharya ji, thank you Beta ji, thank you each and every volunteer and each and every practitioner for really making your life very wonderful. एंड आज का दिन तो वैसे ही बहुत स्पेशल है, आप सबको गणतंत्र दिवस की 26 जनवरी की शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन दिस ब्यूटीफुल, मतलब एक तो संडे ऊपर से 26 जनवरी तो मतलब फिर भी आप लोगों की कमिटमेंट है कि आप आए एंड आपने अपने जिंदगी को, अपने दिन को जादुई बनाने के लिए कमिटेडली सीखा। So thank you very much for your learning. Am I audible? Yes, 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 दिख रही हूँ ma'am. मैं? So thank you very much for each and every practitioner for being here. Yes, any question before we No, sign ma'am, off? no questions today. तो ठीक है, अपनी अपनी छुट्टी को बेहतरीन तरीके से बनाए। देखे आज आप दिन भर में क्या करने वाले हो, कोई झंडा फहराने जाने वाला होगा, नहीं तो एक एक झंडा अपने घर के आगे तो लगा ही सकते हो आप लोग। मतलब आई रियली लाइक दैट थिंग ना, जब हम हमारे को बोला जाता था, अब इस साल नहीं बोला ना, शायद पिछले साल बोला था या 15 अगस्त को बोला था, आई डोंट रिमेम्बर, जब कहा गया था कि हर घर फहराएगा तिरंगा, ऐसा कुछ बोला था, कुछ स्लोगन आया था। बट अच्छी चीज है ना, आई मीन आवर नेशनल फ्लैग इज सच एन ऑनर टू बी विद अस। मतलब मैं देख ही रही थी अभी, मैं दिखा रही हूँ, मतलब कल हमने खेला था ना ऐसे तो हमने हम अपने नेशनल फ्लैग, कल यहाँ पे बैंगलोर में थे, तो नेशनल फ्लैग तो था, पर उसके साथ हम कितने सारे मैजिशियंस, कितने मिलियनर मैजिशियंस क्रिएट कर रहे हैं। मतलब सोचो हर घर, मतलब हर कोई घर संपन्नता से भरा हुआ है। मतलब अपने भारत माता को प्यार करना, अपने देश को प्यार करना, देश की हर हर चीज के अंदर पहले से ही बहुत सारा ग्रेटिट्यूड रखना, and this is how you begin a beautiful journey with your own nation, with your own citizenship and being a human, that is what you can do all the time। तो अपने अपने घरों के ऊपर, बट इसलिए नहीं कि हम कोई मतलब पेट्रोटिज्म इज अ बीइंग, मतलब अगर, मतलब ये कोई कहने या करने की बात नहीं होती है। आप अगर, एंड आई फील, अगर आप अपनी मम्मी के लिए ग्रेटफुल होते हो, अपने पापा के लिए ग्रेटफुल होते हो, तो अपने देश के लिए ग्रेटफुल होना, अपने भारत के लिए, अपनी धरती माता के लिए ग्रेटफुल होना नेचुरल हो जाता है उस समय ना। तो आई मीन अगर जितना जितना आप अपने देश के साथ नहीं जुड़े होते हो, इसलिए क्योंकि आप अपने माता या पिता में से किसी के साथ आपका जुड़ा थोड़ा कम है, इसीलिए आप देश के साथ जुड़ना, क्योंकि वो तो नेक्स्ट स्टेप होगा ना। अगर आप अपने आप के साथ जुड़े हो, अपने माता पिता के साथ कृतज्ञ हो, तो नेक्स्ट स्टेप अपने आप आ जाएगा अपने देश के लिए, जिस भी देश में आप पैदा हुए हैं। एंड अगर आपने तरक्की करनी है, तो अपने देश के लिए कृतज्ञ होना, उसकी हर चीज का, जो जिस हवा में मैं जी रही हूँ, जिस धरती पे मैं चल रही हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ, मैंने जो भी अपने करियर में बनाया, पढ़ाई लिखाई करी, पार्लर खोला, इतनी इतनी नाम, तरक्की, इज्जत मिली, सब कुछ इसी देश की ही देन है, गिफ्ट है। सो थैंक यू वेरी मच टू आवर ब्यूटीफुल भारत माता, मदर इंडिया। एंड हम लोग तो कितने कृतज्ञ हैं और कितने किस्मत वाले हैं कि हमारी भारत के आगे तो माता अपने आप ही जुड़ा हुआ है। आई मीन आई डोंट नो अदर पीपल, लाइक वो फ्रेंच वाले फ्रांस माता बोलते हैं कि नहीं तो आई डोंट नो, पर हम लोगों का मदर इंडिया या भारत माता खुद जुड़ा हुआ है, ताकि हमारा दिल से कृतज्ञ रहे, और हर एक चीज जो हमने उनसे प्राप्त करी है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड बीइंग बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, और तभी तो जी पा रहे हैं। इतना भिन्न भिन्न तरह के लोग होते हैं भाई। अभी एनिया वहां से आई है क्रूज से आई है, और हम भी जहाँ पे है वहां पे भी, मतलब कहती भिन्न भिन्न प्रजातियों के लोग मैंने कहा कोई जानवर है वो, भिन्न भिन्न प्रजाति, कहती मतलब लोग भी इतने तरह के हो सकते हैं, हैरानी की बात है। मतलब कोई कैसा है, मतलब कोई ये वाली भाषा बोल रहा है, कोई ये वाली भाषा बोल रहा है, कोई ऐसे दिख रहे हैं, कोई ऐसे दिख रहे हैं, कोई इस तरह का खाना खाना प्रेफर करता है, उस तरह खाना खाना, मतलब हर तरह के अलग अलग, नॉट लाइक ओनली नेचर वाइज और कैरेक्टर वाइज, बट लाइक एक्चुअली में, मतलब अगर आप
आपके वाले जहाँ पे भी रहते हो वहां पर एक बार जाकर देखो। हम तो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, तो भाई नॉर्थ इंडिया तो कमाल की डेमोक्रेसी है। मतलब दिल्ली तो है ही है, हमारे तो मोहल्ले में इतनी डेमोक्रेसी है तो वो तो है ही है। पर अब थोड़ा भी जाओ, जैसे कि अगर मैं दिल्ली से जा रही हूँ गुड़गांव, यहाँ गुड़गांव में थोड़ा आगे बड़ी हरियाणा वाले, और छोरी कहाँ जान लग रहे हैं ऐसे बोलते हैं। तो थोड़ा सा इस तरफ आ जाओ पंजाब में, एक कुड़ी है कितने जाती पई है, थोड़ा सा उस तरफ चले जाओ राजस्थान की तरफ, उनकी अलग भाषा है। फिर थोड़ा और आगे चले जाओ, मतलब कुछ कुछ किलोमीटर्स के अंदर ही भाषा चेंज हो जाती है। आई मीन लिटरली यू जस्ट, यही तो ब्यूटी है, भाषा चेंज है, लोगों की शक्लें चेंज है। कैन यू बिलीव, शक्लें चेंज हो रही हैं, उनकी कदकाठी चेंज हो रही है, उनका रंग रूप चेंज हो रहा है, उनका खाना पीना चेंज हो रहा है। मतलब यहाँ पर हम खा रहे हैं परांठे और मक्खन, थोड़ी आगे निकल रहे हैं वहां पे वो दाल भाटी चोकर भाटी पता नहीं क्या क्या मिलना शुरू हो गया है। मतलब कुछ ही, मतलब विद इन अ डे यू कैन कवर सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस। मतलब कि अब तो हाईवेज बहुत अच्छे बन गए हैं, तो यू कैन एक्चुअली एंजॉय दैट। एंड उनका कल्चर अलग है, उनकी सोच अलग है, उनकी मेंटालिटी अलग है, उनका सब कुछ कपड़े पहनने का ढंग क्या, सब कुछ अलग अलग है। और इतनी विभिन्नता के साथ भी हम लोग एकता में रहते हैं। कमाल की बात तो ये है। मतलब एक घर में अगर 20 लोग हों, एक घर के अंदर अगर 20 लोग और उनसे पूछा जाए कि आज खाने में क्या खाओगे, हर कोई अपना अपना जवाब देता है ना, कि आज मैं आमलेट स्लाइस खाऊंगा, मैं परोंठी खाऊंगा, आलू पूरी बना लो, अच्छा ये बना लो। और 20 लोगों को एक विचार के साथ एक मत करना कितनी बड़ी बात होती है। मैं कह रही हूँ 20 छोड़ो, आपकी अपनी अगर सिंगल आपकी न्यूक्लियर फैमिली भी है तो उसमें हो सकता है 5 लोग रहते हो, 4-5, उनको एक मत करना कई बार टास्क बन जाता है। कि आज हम कौन सी मूवी देख रहे हैं, इस पे भी लोग कई बार डिफरेंट डिफरेंट व्यूज रखते हैं। एक मूवी देखने के लिए वो एक मत नहीं हो पाते। और यहाँ मतलब 100 करोड़ से ऊपर के लोग हैं, ये 100 करोड़ से ऊपर के लोग, और ये लोग एक मत होके कंट्री चला रहे हैं, क्योंकि हर किसी के पास वोटिंग राइट है। और हर कोई मतलब अपने अपने लिए खुद खुद मतलब इंडिपेंडेंट है। तो मतलब, और वो लोग एक कंट्री को एक मत में चलाना, और जो भी टॉप पे बैठा है वो हर किसी को मैनेज करके चलाने की कोशिश कर रहा है। उसकी हालत सोचो, जो टॉप पे बैठी होती है, जो भी गवर्नमेंट है, जो भी इलेक्टेड पीपल होते हैं। मतलब कि उनको उनको पंजाब भी देखना है, उनको राजस्थान भी देखना है, उनको तमिलनाडु भी देखना है, उनको मणिपुर भी देखना है। और हर किसी का कल्चर अलग है, हर किसी की सोच अलग है, हर किसी की फीलिंग्स भी अलग होती हैं। आप ह्यूमन हो, पर आपका बिलीफ सिस्टम और आपका अपब्रिंगिंग भी तो चल रहा है ना साथ में। तो इतनी विभिन्नता वाले देश में रहना और इतनी अच्छी एनर्जी के साथ रहना, और सच में आप आपस में बढ़ बढ़ के आगे बढ़ते चलने की इस भावना को होना, दिस इज व्हाट माय कंट्री गिव्स मी। So thank you very much for being a part of this beautiful nation called India, and we are so proud to be the part of the Gantantra Divas. So happy Republic Day to all of us. Happy 26 जनवरी। चलिए परेड देखते हैं और मजेदार मजेदार अपना दिन बिताते हैं। All the best, खूब सारे मजे। Thank you very much. Love you all. Enjoy your holiday. Thank you very much. Love you all. See you soon. See you at 12 o'clock or tomorrow. Thank you.